Good morning to the distinguished panelists and attendees. It is my pleasure to welcome you all on behalf of Consulate General of India, Birganj, to this webinar on relevance of teachings of Mahatma Gandhi in today's world. This webinar shall be of 2 hours, wherein 5 renowned Gandhian scholars, 2 from Indian side and 3 from Nepalese side, will be sharing their views on the subject. The idea to celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi germinated during the Ambassadors Conference, followed by a meeting chaired by our Honorable Prime Minister Modi in July 2018. Based on the suggestions received during the course of discussion, the Ministry of External Affairs formulated the following program, which were to be executed by the Indian missions and posts abroad during the course of 2 years. These programs included singing of Vaishno Janto in Gujarati by prominent artists globally, issuance of Gandhi stamps by postal departments in all the countries, identification of globally renowned persons to write an anthology on Gandhiji, what Gandhi means to them in the 21st century, commemorative Gandhian medallion, Tamrapatra given to outstanding international personalities who are influenced by or practice Gandhian ideals in their life and work. Dubbed or subtitled version of Lage Raho Munna Bhai film was screened abroad. Digital translation of collected works of Gandhi, vegetarian food festival, global cycling event organized on World Cycling Day, that is 3rd June 2019 in Gandhi's memory. Short inspirational talks by the persons who are influenced by Gandhiji. Satyavarta talks were uploaded on the internet. There were planting of trees on World Environment Day. Promotion of Khadi as a health solution, sustainable development or employment generation solution. Khadi to be treated as an idea, not merely as a garment. Digital project of Gandhi on iconic buildings. Talk events in schools and hand out books and educational materials on Gandhi in different languages. We also try to do certain events like painting, sketch and posters making, debate, speech and quiz. We also participated in Run for Health. We also organized Swachhta Abhiyan along with Chief Minister of Province 2 in Birganj. We also participated in the tree plantation program organized on 5th June 2019 in association with Green City, Samudaik Seva and Gotham Secondary School, Birganj. We also participated in a 10-kilometer long bicycle ride organized on 11th June last year. Last year, a Khadi fashion show was also organized. And at the end of it all, we also distributed prize to all concerned. We would get to know more about Gandhi when our panelists speak. I would just like to reiterate some of the sayings on Mahatma Gandhi and some of the views of top personalities of the world. In 2009, when Barack Obama was asked if you would have dinner with anyone dead or alive, who would it be? Obama had answered, well, dead or alive, that's a pretty big list. You know, I think it might be Gandhi, who is a real hero of mine. Nobel Prize Peace winner and prominent Burmese freedom fighter Aung San Suu Kyi said Gandhi had been one of the major influences in her life and she urged the students to read his works. When Nelson Mandela, the great leader of South African people, was asked, he said, Gandhi's ideas have played a vital role in South Africa's transformation and with the help of Gandhi's teachings, apartheid has been overcome. His Holiness Dalai Lama had said, I have the greatest admiration for Mahatma Gandhi. He was a great human being with a deep understanding of human nature. His life has inspired me. Christ gave us the goals and Mahatma Gandhi the tactics, said Martin Luther King Jr., the beloved civil rights leader in the United States of America, who adopted non-violence as the weapon of choice to help millions of African Americans fight for their rights. Albert Einstein and Gandhi were big admirers of each other and exchanged letters frequently. Einstein called Gandhi a role model for the generations to come. In a letter writing about him, he said, I believe that Gandhi's views were the most enlightened to all the political men in our time. Former US Vice President and environmentalist Al Gore acknowledges Gandhi's influence on him, especially in his fight against global warming. He says, Mahatma Gandhi's philosophy of Satyagraha can be translated to mean truth force. It is this truth force which can help us to fight this battle honestly and with people's participation. When Steve Jobs started his second innings at Apple in the year 1997,
He stood before a giant portrait of Mahatma Gandhi and said these words before a packed audience. Here is to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. It is believed that Mahatma Gandhi inspired these words. Although Rabindranath Tagore and Gandhi had some sharp differences, the former was the first notable contemporary to refer to the latter as Mahatma. Mahatma Gandhi came and stood at the door of India's destitute millions. Who else has so unreservedly accepted the vast masses of the Indian people as his flesh and blood? Truth awakened truth, said Tagore. Film director and producer Lord Richard Attenborough's film Gandhi swept the Oscars in 1983. Speaking of his inspiration, he said, when asked what attribute he most admired in human nature, Mahatma Gandhi replied simply and immediately, courage, non-violence, he said, is one to be used as the shield of the coward. It is not to be used ever as the shield of the coward. It is the weapon of the brave. Last but not the least, is what Nobel Prize winning Irish playwright George Bernard Shaw say about Mahatma Gandhi. Impressions of Gandhi? You might well ask for someone's impressions of the Himalayas. Now I would like to introduce the speakers so that they can come turn by turn and have their views. Let me begin with the ma'am, Dr. Varsa Das. Dr. Varsa Das was born in 1942. She has done her MA in Sanskrit and Hindi from the University of Bombay and doctorate in education on potentials of traditional performing arts for inculcating scientific temper from Osmania University, Hyderabad. She has nearly 100 publications to her credit. They include originals, translations, and adaptations in the genres of fiction, non-fiction, poetry, and books for children. She writes in Gujarati, Hindi, and English and translates from Bangla and Oriya also. Being born and brought up in the family of freedom fighters in Bombay, she imbibed Gandhian values during her childhood. She received training in writing and journalism from her father, Mohan Lal Mehta Sopan, in her teens and began to translate speeches and essays of Gandhiji, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Vinoba Bhave, Kaka Kalelkar, Dada Dharmadhikari, and others from Hindi, English, and Marathi into Gujarati for the journals published by her father. She is an art critic for the past 45 years and is writing an art column in Hindi for Jansatta since 2003. After moving to Delhi in 1968, she was associated with the Gandhi translation and compilation work of the collected works of Mahatma Gandhi. She had an opportunity to work with Sri K. Swaminathan and Sri Mahendra V. Desai on the biographies of freedom fighters for the National Book Trust. At the request of Sri Krishna Kriplani, she translated the abridged his biography, Gandhi a Life, into Hindi for young readers, and it was further abridged and simplified for continuing education series. Both the versions have been published by the National Book Trust. Madhuban Educational Books have published her English translation and abridgment of Gandhi's autobiography. Her lecture on Gandhi Ji Ka Saundarya Shastra or Kala has been published by Rajasthan Adult Education Association. Her articles on Gandhiji and Kasturba have been published in the Gandhi Smriti journals, Ishani, Mangal Prabhat, etc. She has worked in close collaboration with the Navjeevan Trust and Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad on various projects. She was invited to give a valedictory lecture at the two-day international seminar on Gandhi and the contemporary world, held at the University of Meerut. To speak on Gandhi at Colombo in Sri Lanka, Madrid in Spain, at the Institute of Gandhian Studies, Wardha, Mahila Mahavidyalaya, BHU Varanasi, and also to a number of schools and colleges in Delhi on All India Radio and various television channels. During her tenure with the National Book Trust, she had taken the initiative for bringing out a number of books on Gandhi, Gandhian thought, and reprints of some Gandhian literature, and also specific books on Indian women. The last one in the NBT was an anthology of first-hand accounts written on women reformers and freedom fighters, compiled by Dr. Shushila Nair and Srimati Kamla Mankekar, and supported by Sri Tarlok Singh. Her pictorial book, The Story of Satyagraha in Photographs, has been published in Hindi and English by National Gandhi Museum, New Delhi.
Her books have been published by a number of other publishers in Gujarati, Hindi, and English. She has been a resource person with the Asia Pacific Cultural Center for UNESCO and National Literacy Mission for literary and book development programs. She has been a member of several award selection committees on arts, literature, and literacy, and is the recipient of several awards which include organizations like Sahitya Academy, New Delhi, Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad, and for contribution in humanistic education by Soka University, Tokyo. She has worked with the National Book Trust India, an autonomous body under the Ministry of Human Resource Development, as a chief editor and joint director, and also as the acting director. She was deputy director in the Directorate of Adult Education, Government of India, and deputy secretary in the Lalit Kala Academy. She retired in November 2002 after serving the NBT for 3 decades. She was the chairperson of the advisory board of Adivasi Academy, Gujarat, a trustee of Dr. A.B. Baliga Memorial Trust, among others. She is also a life member of several educational and literacy organizations. She is the former director of National Gandhi Museum, New Delhi, and an active member of Bharat Shok Gakkai for past 39 years, which works for peace through educational and cultural activities. Without further ado, let me welcome Ma'am Dr. Varsha Das to say what she has to say about teachings of Mahatma Gandhi. Ma'am, the floor is yours, please. Opportunity to share some of my learnings from Gandhiji. So our topic is about timelessness of Gandhiji, how relevant he is in the present era. And I hope I'm quite audible. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So 20th and 21st centuries have witnessed widespread violence in many countries of the world. One group wants to eliminate the other for whatever reason. We often feel that we have as if reached an impasse. And in the midst of this scenario, the United Nations General Assembly declared October 2nd, the birth anniversary of Gandhiji, as the International Day of Non-Violence. Gandhiji altered the course of history, not only in India, but it impacted the whole world. And he manifested and utilized his own inner potentials and empowered hundreds and thousands of fellow human beings to do the same. How was Gandhiji himself empowered? And what do we mean by empowerment? A community organizer, writer, and political activist, Saul David Alinsky, defined empowerment as the art of transforming discontent into conscious political action. Many people don't think about or act on social issues because they feel powerless. Why worry about a problem which I can't fix? The best way to overcome feelings of helplessness, said Alinsky, is to assist people in winning a steady stream of modest, concrete achievements. That is exactly what Gandhiji did when he was empowered. As mentioned in his autobiography, Gandhiji was deeply influenced by two books, namely John Ruskin's Unto This Last and Leo Tolstoy's The Kingdom of God is Within You. About the first book, Gandhiji has summarized its teachings in 3 points. The first is that the good of the individual is contained in the good of all. Second is that a lawyer's work has the same value as the barber's, inasmuch as all have the same right of earning their livelihood from their work. And the third is a life of labor, that is the life of the tiller of the soil, and the handicraftsman is the life worth living. As mentioned in his autobiography, he knew the first one, the second he dimly realized, the third one had never occurred to him. But he realized on reading Ruskin's book that the second and the third were contained in the first one. And he decided to put these principles into practice. This realization was his empowerment.
How he practiced it in his life can be seen from the incident in South Africa when he was pushed and kicked by a policeman without any warning to get off the footpath. The footpath of the President Street was meant only for the whites. Mr. Michael Coates, Gandhiji's Quaker friend, who was passing by that place on his horseback, he saw how Gandhiji was humiliated and he immediately called out, Gandhi, I've seen everything. I shall gladly be your witness in court if you proceed against the man. But Gandhiji replied, what does the poor man know? All colored people are the same to him. I have made it a rule not to go to the court in respect of any personal grievance. So I do not intend to proceed against him. All such incidents led to the declaration of Satyagraha in 1906. The purpose was to get justice for all through the empowerment for all. Association of Gandhi with non-violence has existed for over a century. He had not only shown the path, but had walked on it and had demonstrated that that was the only path that can lead to harmonious coexistence in the society, the only path to fight against injustice and exploitation. In the words of Martin Luther King Jr., Gandhi was probably the first person in history to lift the love ethics of Jesus above mere interaction between individuals to a powerful and effective social force on a large scale. Love for Gandhi was a potent instrument for social and collective transformation. Gandhiji himself has said that the concept of non-violence is as old as his. It is not his discovery, but he is known throughout the world as the torchbearer of ahimsa and the inventor of satyagraha, which was known as passive resistance at that time. The term satyagraha, of course, was coined later on. So how did Gandhiji arrive at ahimsa as one of the core values of life? Gautam Buddha and Mahavir had spoken about non-violence in 6th and 5th century BC. They were against Jeev Hatya, killing of life. Life included everything that is living on this earth. Ancient Indian scriptures have also described non-killing as an essential principle for harmonious coexistence of living beings. If the concept is so old, then why is it ascribed to Gandhiji? What has made the whole world look at Gandhiji afresh? Gandhiji's approach to ahimsa was not limited to religious or spiritual practices. He brought it into economic, political, and social spheres. Gandhiji said, ahimsa is the means, therefore it is in our hands. What I understood from this, that I have to decide what kind of means I should use to achieve the desired end. And if we take care of the means, we are bound to reach the end sooner or later. So what we need is patience, perseverance, and repeated compassion. Positive core human values are inherent in each and every person. Whatever may be one's nationality, religion, caste, creed, or socioeconomic status in the society, those dormant inherent values are activated and manifested by certain external factors and also by one's own sensitivity towards them. It's a process of evolution, just like a seed turning into a tree with good sunshine, rain, and nourishment. The seed, therefore, is our inherent value, but it requires external conscious assistance for its growth. Since childhood, Mohandas was exposed to various temples, monks, and his father's friends of different religions. He grew up respecting all those who had gentle and humanistic approach. He mentions that impression formed at that age strikes root
deep down into one's nature. This is the process of character building. Gandhiji firmly believed that there is a limit to violent action and it can fail. Non-violence knows no limits and it never fails. Gandhiji exemplified this in his life and succeeded in convincing hundreds and thousands of satyagrahis who participated in the struggle for India's freedom with pride. A non-violent grassroots level mass movement ultimately won and became an example for many other countries. Evolution sounds a natural process, but actually it's a conscious process of perseverance, self-reflection, and inner reformation all the time, whatever may be the challenges and circumstances. It is an all-time valid and doable formula for a peaceful and harmonious coexistence even in the 21st century. Gandhiji's feet were on the ground. His heart was with the people. He was a fearless experimenter. That is how his life became the message for the world in the past and present and will continue to guide us in the future. Gandhiji drew a sharp line between self-centered economics and ethics. He said, and I quote, "Economics that hurt the moral well-being of an individual or a nation are immoral." And let me recall what he published in Young India. The issue was 22nd October 1925 under the heading 7 Social Sins. The very first sin, he said, was politics without principles. Siddhant Vihin Rajniti. Second, wealth without work. Parishram Vihin Dhan Uparjan. Third is pleasure without conscience. Vivek Vihin Sukh. Fourth is knowledge without character. Charitra Vihin Shikshan. Fifth is commerce without morality. Sadachar Vihin Vyapar. Sixth is science without humanity. Samvedan Vihin Vigyan. And the last is worship without sacrifice. That is Vairagya Vihin Upasana. Now, whether we give importance to principles in politics or not is our choice. Whether we trade ethically or not is also our choice. Gandhiji had told Transvaal Indians on 8th January 1910, "Virtue does not consist in doing right, but in choosing to do right." This is the great distinction between the animal and man. So what do I choose when I have more than one option? That is my test of humanity. The real revolution, dynamic change takes place when the minds of ordinary people change. It is not a mere change of a party or a government. Revolution can raise negative system to the ground. It can also raise from the ground the people-centric governance based on positive values. Gandhiji's struggle was to provide justice and dignity to those who were deprived of them. For example, right to food is equivalent to the right to live or the right to breathe. All other rights are of significance only in relation to living human beings. In other words, denial or deprivation of food is denial of life, and that is violence. Violence also occurs when the gap between those who have and those who do not have increases. To avoid such stark disparity, Gandhiji has given us the talisman, where he says that recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. So,
If we would have followed this, we could have avoided economic imbalances which have invariably resulted in rampant violence. Therefore, I reiterate that Gandhiji is timeless. He will always remain relevant, irrespective of time and place. Thank you very much. Pranam. Thank you so much, ma'am. Thank you for sharing your views on Gandhi's relevance. Indeed, you ended on a good note, and you indeed told the better things, that violence is not merely the absence of killings or the use of physical forces. It includes so many things, including justice, dignity, right to life, right to food. And you also aptly talk about the talisman what Gandhi has given, and we all keep remembering. Internationally, you have aptly put forward the celebration of 2nd October as International Day of Non-Violence, and you very much summarized the teachings of Mahatma Gandhi, taking extracts from the autobiography and the influence of unto the last, and the kingdom of God is within you, and the 7 obvious things that you spoke: the politics without principles, the wealth without work, and the pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, and the worship without, I think, sacrifice. So we would remember all these teachings of Mahatma Gandhi. So thank you for sharing your views. Thank you. Yeah. Now I would like to introduce to you all our next speaker, Sri Purushottam Dahal. श्री पुरुषोत्तम दाहाल, आप 4.5 दशक से मानव अधिकार के क्षेत्र में क्रियाशील रहे हैं। इसके साथ ही लेखन के माध्यम से सार्वजनिक विमर्श को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र स्थापना के संघर्ष में आप विभिन्न प्रकार से सक्रिय रहे हैं। आपकी एक लंबी सार्वजनिक जीवन रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी निष्ठा अटूट है। आपकी अगुवाई में युवाओं की एक जमात तैयार हुई है जो शांति और मानवाधिकार के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपकी साहित्यिक अवदान भी रही है। तो बिना कुछ और समय लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपने वक्तव्य को रखें। बाकी लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं। श्री दाहाल साहब। Thank you very much. Thank you for giving opportunity to express a few words on the tower personality of this present era, Mahatma Gandhi. I have prepared in Nepali, but I would like to, I have noted in English also, which is convenient. If English is okay, but I have prepared in Nepali. If you allow me to speak in Nepali, okay, I'll say, but I have noted in English, so I present in English version. Thank you very much. The thoughts, personality, and practice of Mahatma Gandhi be a special attraction and value. The triangular carriage of thoughts, personality, and practice are quite different from other philosophers. If a person, irrespective of his or her origin, color, race, age, or gender, has some knowledge about Gandhi's life and thoughts, he or she obviously becomes attentive and pays respect to Gandhi. Gandhi's first and final destination is truth. Another path of reach truth is non-violence, and a method to test the truth is self-experimentation or practice behavior. The Rishi Muni, sages, and philosophers were in quest of truth. Their quest for truth has defined the path to the nearness to God, divinity, to the emancipation, and to the heaven. They did not say that path of the search was non-violence or violence. As we can say, Agni Pariksha, Sita and Dhruva, but that was not individual practice, Agni Pariksha, but always Gandhi used Agni Pariksha, always.
Interestingly, and in the quite difference, Gandhi thoughts are not developed in line with any sage and Rishi Muni's teaching, philosophy, yoga, devotion. But Gandhi's thoughts seem the elation and a moral gain after the study of some books, experience, then socio-political environment and their results. Some books, experiences, then socio-political environment and their results. His attraction and devotion to truth can be traced behind the effect of book on the duty of civil disobedience. It has given a message of cooperation to those who work for the welfare of society, while non-cooperation to those working against society's welfare. Many believe that this very message is the base of civil disobedience. In this connection, Gautam Buddha should be reminded. Now I can't explain about what is the philosophy of Gautam Buddha about this. However, many commentators and researchers have argued that Gandhi was inspired for the civil disobedience while studying the books of Thoreau. Gandhi was not only impressed by John Ruskin, now mentioned Varsha Das also, not only impressed by John Ruskin's on to this last, but also translated it. This book gives confidence to Gandhi on value of labor, work, and determination. He continued work. The thoughts of Sarkha, weaving clothes by hand and simple wood support, has the base on this book. I think so. Similarly, Gandhi was influenced by Leo Tolstoy's The Kingdom of God is Within You and Olaf Jar's work Return to Nature. The spiritual text philosophy of the Gita is another book that talked much for truth and humanity. The Gita inspires everyone to non-violence, integrity, truth. It has also impact on Gandhi. The next thing that had impact on Gandhi and his thoughts and life is the plays by Satya Harishchandra and Shravan Pitri Bhakti. We have heard the story about Shravan Kumar and Harishchandra. We have that drama also. We also saw that drama Satya Harishchandra. These texts were devoted to love, passion, patience, tolerance, reverence to father and mother. India, the country motherland, was regarded as mother and respected accordingly. Gandhi's sympathy and compassion to poor and helpless sick people can be the effects of the plays. Human values can be established only by the society free of discrimination. The discrimination can evaluate from the lens of politics, economy, social status, and competence. The ideologue and philosopher of materialism, Karl Marx, has put in center the discrimination while envisioning the socialism, but all the tenets defined on the basis of dualistic materialism do not give emphasis on human values except the resource, production, and distribution. Marx has envisioned the state-less society with the class struggle to end the inequality between haves and have-nots. But there are many mistakes, weaknesses on the thoughts of class struggle. There is no meaning of humanity in such struggle. The struggles and the revolutions made based on Marxist thoughts, including the October Revolution of 1917, and others collapsed badly. They were cruel, inhuman, revengeful, and power-hungry. But Gandhi's views, philosophy, and practice are so perennial that they are for the development of humanity. Ideology and thoughts do not limit to any geography. In my understanding and observation, Gandhi's thoughts have some differences. For example, one, Gandhi involved in the liberation movement against a powerful country's control. He proved it false that
change is possible only with weapons, atomic bomb, or military control. Without. He established the thought that willpower within the person is the most powerful element for change. Then he fully rejected the idea that any kind of means is applicable to the goal destination. He had but established that the means and methods must be right for right goal destination. While struggling for change, not troubling others, but to self is essential, although the path to truth is difficult and full of problems. Self-devotion without the feel of stress can lead down towards this path. Such mantras led Gandhi to make India free of the English colonization. India became united. He established that the human values are the best way and foundation to change governance and system, but not any bloody war or insurgency. Some remembering Gandhi. Why we remember to Gandhi? How does present time remember Gandhi? It is our era. How we remember to Gandhi, and our near future generation how they remember Gandhi. Just it is my opinion. It is an important question. Not only present, how will the future remember him? These questions bear significance also because there were others like Subhash Chandra Bose campaigning against Gandhian thoughts. A section of thought is still prevalent that change is impossible without weapons. In the initial days of the First World War, Gandhi was in South Africa for civil disobedience, although his satyagraha, civil disobedience from 1907 to 1914 was successful in South Africa. The Old War is the First War from 1914. After the First World War was over, Gandhi launched various forms of civil disobedience against the English rule in India. As so Salt March, Satyagraha, and others. Being inspired by the Gandhi's view, even the United Nations acknowledged the day October 2nd to be observed as the International Day of Non-Violence and the Gandhi Jayanti. We are so many Nepalese peoples also. We have remembered to them as B.P. Koirala, Matrika Prasad Koirala, Tulsi Meharji, Bhadra Kumari Ghale, so on, Mahendra Nath Nidhi. So many people are followers of Gandhi. Now, I would like to conclude. I think I have to conclude my short opinion on Gandhi. Again, I am thankful to express my opinion on Gandhi and Gandhism. Tomorrow, just an information. Tomorrow we are organizing a program. Every year we organize one program from Mahendra Nath Nidhi Memorial Academy, which is established in the name of Mahendra Nath Nidhi, which is the legend democratic leader from Dhanusar district, and now his son is Mr. Bimalendra Nidhi, who is the vice president of Nepali Congress also, and he is the honorary chair, and fortunately I'm their chairperson of that organization. Tomorrow we are organizing every year October 2nd we are going to organize on Gandhism, Gandhi, non-violence, peace, truth, and tomorrow Gandhi, non-violence, and peace process of Nepal. On that subject, we are going to organize the program, and I invite you to all friends and Indian ambassador and Swiss ambassador also participating in the program, and Nepali Congress president is the chief guest, and other Communist Party leader also involved, and they will address the program. Now I again thanks to Sureshji
Nitish ji, and especially my brother and friend, Mr. Chandra Kishore, who always me telephone to talk something and to say something to participate in this program. And I have written in Nepali very long documents, but now in short, I presented these documents. And if you need complete paper, I will send you in your mail also. Okay, and Damandai, namaskar. If anything, I think Damandai will say and explain other matters, and especially, okay, thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for sharing your views on Mahatma Gandhi's relevance in today's world. You have aptly put that Gandhi is not belonging to only one country, he belongs to everybody. And you aptly put about his relationship with Nepal and the followers of Gandhi or Gandhian thought in Nepal, be it Mr. B.P. Koirala, Mr. Mahendra Narayan Nidhi, and others. We would look forward to what you wrote in Nepalese. If you could forward it to us, we'll get it translated for the benefit of others, and we would try to share it with others as well. बहुत खुशी हुई कि आपने इंग्लिश में बोला, चूंकि हमारे ऑडियंस ने इंडिया से भी ज्वाइन किया था तो शायद उनके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता कि वो भी समझते आपकी बात को, तो बहुत खुशी हुई इस बात के लिए. और आपने काफ़ी चीज़ें बोली. यू स्पोक अबाउट गांधीज आइडिया ऑन सेल्फ डिवोशन and his philosophy of willpower. That is indeed very true, that willpower is the most important weapon to change, and it comes from within. There is no outside agency to change. You also spoke about inequality of haves and have-nots, the class struggle, the October Revolution of 1917. You also spoke about the influence of Raja Harishchand and Shravan Pitra Bhakti on Gandhiji, Charkha, the value of labor, work determination, civil disobedience, and the study of Gandhian thoughts in socio-political environment. You also spoke about Gandhi using Agni Pariksha in his life and his quest for truth and nearness to heaven. And Gandhi, as he is different from the other philosophers of the world, and that's why he is paid respect all across the globe. Thank you so much, sir, for sharing your views. Now I would like to introduce to you all Padam Vibhushan Sri Chandi Prasad Bhatt. उनका जीवन परिचय मैं आपसे करवाता हूं. श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म 23 जून 1934 को गोपेश्वर जिला चमोली में हुआ था. एक सर्वोदय नेता के रूप में आपकी विख्यात पहचान है. आपकी मूल संस्था दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल है. आपका समस्त जीवन हिमालय क्षेत्र के विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक विकास से जुड़ा रहा है. आप चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं. आपके द्वारा वनों को व्यवसायीकरण से बचाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं. पिछले 5 दशकों से आपके द्वारा ऊपरी अलकनंदा घाटी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास कैंपों के माध्यम से जन चेतना विकास एवं युवाओं व महिलाओं की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण हेतु सराहनीय कार्य संपादित किए गए हैं, जिनका संज्ञान पूरे विश्व द्वारा लिया गया है. यात्राओं के माध्यम से आपने हिमालय क्षेत्र के समस्त प्रदेशों एवं लगभग समस्त नदियों का अध्ययन किया है. साथ ही हिमालय विकास क्षेत्रीय संसाधनों एवं उनके विकास पर केंद्रित होना चाहिए की अवधारणा को बल मिला है. आपके द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है कि यदि ईमानदारी से कार्य किया जाए तो विकास एवं पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं. इसके लिए आपके द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवाओं, महिलाओं एवं ग्रामीण संगठनों को विकसित एवं सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है. आपको सराहनीय कार्यों हेतु अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री 1986 में, पद्म भूषण 2005 में एवं गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार 2013 महत्वपूर्ण हैं. इसके अतिरिक्त वर्ष 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1987 में UNEP ग्लोबल 500 पुरस्कार, 2011 में अर्थ हीरो पुरस्कार एवं ग्रीन लीजेंड पुरस्कार, 1983 में USA में आर्कनसस प्रांत के लिटिल रॉक की मानद नागरिकता, 2008 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा DSC एवं 2010 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानक उपाधि, 2017 में ग्राफिक द्वारा विश्वविद्यालय
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि। 2018 में ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से भी आपको सम्मानित किया गया है। 2019 में आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18 से सम्मानित किया गया। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा आपको 2019 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की गई। आपके द्वारा देश की कई समितियों यथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, योजना आयोग, आयुष विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसरो में अध्यक्षता एवं सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा आपको ग्रामीण प्रौद्योगिकी समूह के उत्तराखंड का सलाहकार नियुक्त किया गया। आप प्रथम राष्ट्रीय वन आयोग के सदस्य तथा वनों के लिए 20 वर्षीय कार्य योजना समिति के अध्यक्ष रहे। आप गैर सरकारी संगठन CSE नई दिल्ली, CEIC अहमदाबाद आदि की कार्य परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य भी रह चुके हैं। आपने अपने अनुभव से राज्य सरकारों की समितियों यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप को भी लाभान्वित किया है। आपके द्वारा समय समय पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, कृषि विश्वविद्यालयों एवं पंतनगर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, जोरहाट, बड़ा पानी मेघालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गौतम विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से हो चुके हैं। अब मैं आग्रह करूंगा कि सर आप अपनी बातों को लोगों के सामने रखें। पद्म भूषण श्री चंडी प्रसाद भट्ट सर। सर प्लीज। जी नमस्कार, मैं हिंदी में बात करूंगा। सर प्लीज। जी, सम्मान्य नीतीश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, डॉक्टर प्रसाद जी, पुरुषोत्तम लाल जी, विद्वजनों, मैं विनम्रता पूर्वक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं विषय विशेषज्ञ एवं एकेडमिशियन नहीं हूं। मैं सामाजिक हित चिंतन के लिए ग्रामीण परिवेश में ग्रामीणों से बचाने वाला, उनके अनुभवों से सीखने वाला, उनके अनुभवों से जो कुछ भी सीखा उसी पर आप लोगों को से बातचीत करना चाहूँगा। और मुख्य रूप से आज जो भारतीय दूतावास का जो पीरगंज केंद्र द्वारा यह आयोजन किया गया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ और इसमें मुझे भी बातचीत के लिए बुलाया, समय दिया गया है। इसके लिए मैं केंद्र का मुख्य रूप से नीतीश कुमार जी का, सुरेश कुमार जी का हृदय से आभारी हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 1956 की बात है, जब जयप्रकाश नारायण जी बद्रीनाथ आए थे। उस समय हम लोग छोटी सी नौकरी करते थे, तो पहली बार जयप्रकाश नारायण जी से हमने गांधी जी के विचार और उनकी सीख के बारे में सुना था। और उसी के एक हफ्ते बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती का मौका था। हमने जोशीमठ एक जगह है बद्रीनाथ के रास्ते में, वहाँ पर गांधी जयंती समारोह आयोजित किया, जिसमें सर्वोदय दर्शन के विद्वान आचार्य दादा धर्माधिकारी और बिमला ठक्कर आए थे। उन्होंने कहा भाई ये गांधी जयंती नहीं है, क्योंकि हम सुबह से जो प्रभात फेरी से लेकर के दिन की सभा तक लगातार गांधी जयंती कहते रहे। उन्होंने कहा ये गांधी जयंती नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि आज ये चरखा जयंती है। और उसके बारे में विस्तार से हमको जानकारी दी कि गांधी जी व्यक्ति निष्ठा के बजाय तत्व निष्ठा में विश्वास रखते थे। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को इतनी प्रसिद्धि मिल गई थी, लोग उनकी मूर्ति स्थापित करने लग गए थे, उनका जन्मदिन मनाने लग गए थे। इस सब से गांधी जी चौंक गए थे और गांधी ने अपने जन्मदिन को गांधी जयंती के बजाय चरखा जयंती के रूप में मनाने की सलाह दी थी।
गांधी का चरखा समाज परिवर्तन तथा क्रांति का प्रतीक था। गांधी ने चरखा और तकली को दुनिया की सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया। इससे हजारों मील दूर इंग्लैंड के मैनचेस्टर तक प्रभाव पड़ा। गांधी जी का चरखा स्वावलंबन, आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त करने का एक सबसे प्रतीक था। ऐसे चंपारण का ही उन्होंने उदाहरण दिया कि गांधी जी ने आम जन को सच बोलना सिखाया, सीधा चलना सिखाया। गांधी से पहले हमारे देश भारत में यदि कहीं कोई आदमी पकड़ा जाता और उससे कहा जाता है कि उसने राजद्रोह किया है, वह कहता कि कानून की दृष्टि में मैं बेगुनाह हूँ। गांधी पहले आदमी थे जिन्होंने अंग्रेज सरकार की अदालत में खड़े होकर कहा कि जिला अधिकारी के ऐसे आदेश, माने जो नील की खेती के बारे में था, को न मानने का अपराध मैं स्वीकार करता हूँ और इसके लिए कलेक्टर से कहा कि तुम्हारे पास बड़ी से बड़ी जितनी भी सजा का प्राविधान है उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि अपने देश में मैं कहीं भी आने जाने और कहने की आज़ादी पर वे किसी भी रुकावट को स्वीकार नहीं करेंगे। सच्ची बात सीधे शब्दों में कहने की सीख गांधी जी ने हमें दी, और ये केवल हमारे ही देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई सीख है कि सच्ची बात यदि हम कहते हैं तो उसका एक अपने ढंग का प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी बताया कि सत्य के लिए, आज़ादी के लिए जेल भी जाना पड़े तो इसे अपना सम्मान समझना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने निर्भयता और निडरता का पाठ भी हमें सिखाया। आज हम देखते हैं कि हम छोटी सी भी बात में अपने गुनाह को कबूल नहीं करते। गांधी जी ने जैसे 1942 के बाद गांधी जी ने अपने कार्यों के लिए स्वयं को जिम्मेदार होने की जिम्मेदारी लेने की सीख भी दी। अदालत ने गांधी जी से कहा था कि तुम्हारे आंदोलन के कारण पुलिस की चौकियों पर आग लगाई जा रही है। गांधी ने कहा कि देश में मेरे आंदोलन के कारण जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उसके लिए मैं अपने को जिम्मेदार मानता हूँ। आंदोलन मेरा था, उसका अपराधी मैं हूँ। आज यह बात साहस और नेतृत्वकर्ताओं में नहीं दिखती है। हम देखते हैं कि जगह जगह आंदोलन शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें यदि गड़बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी खुद बनने के बजाय दूसरे पर डाल देते हैं कि कुछ ऐसे अराजक तत्व थे। तो यदि हमने आंदोलन स्वयं शुरू किया तो इसको अपने आप में वो करना चाहिए। गांधी एक तरफ से युग दृष्टा थे, चिंतन और व्यवहार परिस्थिति एवं पर्यावरण के प्रति वे बहुत स्पष्ट थे। दशकों पहले उन्होंने कहा था कि धरती सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच और विलासिता को नहीं। गांधी जी इस विचार और चेतावनी के बावजूद हम सब गांधी जी के इस विचार और चेतावनी के बावजूद हम सबको जन्म देने वाली, हमारा पालन करने वाली इस धरती पर हमने अपने लालच को बढ़ाकर गंभीर संकट पैदा कर दिया है। यह संकट लगातार घनीभूत होता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के अधिकांश भाग पर्यावरणीय बिगाड़ से संत्रस्त हैं। एक और हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, दूसरी और उससे भी अधिक तेजी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। इससे पानी के परंपरागत स्रोत सूख रहे हैं और जो सब नदियों को सदाबहार बनाए रखने वाले हिमनद हैं वो तेजी से पीछे सरक रहे हैं। वायुमंडल दूषित हो रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से उत्पादकता पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। भूक्षरण, भूस्खलन, भूमि कटाव, नदियों द्वारा धारा परिवर्तन की घटनाएं नियमित हो रही है। बाढ़ से प्रतिवर्ष हमारे मुख्य रूप से जो गरीब देश हैं, जो दक्षिण एशिया के जो मुल्क हैं, प्रतिवर्ष लाखों लोगों की तबाही हो रही है और विकास योजनाएं भी इससे प्रभावित हो रही है। आज हमारे सामने पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं वबाएं खड़ी हैं। इन समस्याओं का मुख्य कारण हमारी बढ़ती भौगोलिकता
और विरासता है, प्रकृति की आवश्यक दोहन के बजाय आज यदि इसलिए गांधी जी की जो चेतावनी जो उन्होंने दी है कि प्रकृति का केवल अपने न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए उपयोग करें, यदि हम इस प्रकार की चेतावनी को के अनुरूप व्यवहार होता तो आज जो पर्यावरण का जो विश्वव्यापी संकट है वो इतना नहीं गहरा था। दूसरा, गांधी जी ने अहिंसा और आवश्यकताओं की सीमितता, जिसमें ये हमारी पृथ्वी पर जो पर्यावरण का संकट है इसमें आवश्यकताओं की सीमितता और सतत कर्मशीलता गांधी जी के बहुत से आदेशों में से बहुत जरूरी, व्यवहारिक, शाश्वत और सर्वकालिक हैं, जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक तथा आज भी पूरी तरह व्यवहारिक है। उन्हें जीवन में उतार कर ही मानव जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा नायक है उसे सदा सर्वदा के लिए जिन्हें योग्य बनाए रख सकता है। गांधी जी ने इन्हें न केवल अभिव्यक्त किया बल्कि जीवन का हिस्सा भी बनाया और इसी से वे दुनिया के तमाम आदर्शवादी व्यक्तियों से एकदम अलग और आगे खड़े दिखाई देते हैं। जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि गौतम बुद्ध और महावीर के बाद हमारे सभी भगवानों, देवताओं और अवतारों ने बुराई का नाश करने के लिए शक्ति और शस्त्रों का सहारा लिया। समस्त सत्ता संचालक शक्ति से नियमों, कानूनों का पालन करवाते आए हैं, लेकिन गांधी जी ने इस सब से गैर जरूरी माना और उसका परित्याग करने का नारा दिया। स्वयं भी उसका कभी सहारा नहीं लिया। उन्होंने मानव को सिखाया कि आत्मशक्ति से बड़े संघर्ष के और जीते जा सकते हैं। यह गांधी की शिक्षा रही और उसमें आजादी की लड़ाई लड़ करके भी उन्होंने दिखाई तथा विजय प्राप्त की। हमारा तो स्वतंत्रता संग्राम इसलिए विशिष्ट था कि गांधी जी के कुशल और मर्यादित नेतृत्व में उसमें हिंसा और पार्श्विक शक्ति का निषेध रहा। तीसरा, जो प्रत्येक मनुष्य की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए सतत कर्मशील रहना चाहिए। गांधी जी का यह वर्तमान में भी सबके लिए व्यवहार्य है। यद्यपि अब जीवन और जीविका की परिस्थितियों में भारी बदलाव आ गया है, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सके हम कर्मशील बने रहना चाहिए। पर्यावरण के असंतुलन के भीषण दौर में भारी सामाजिक और आर्थिक असमानता व असंतुलन के बीच भूख से मरने वालों की संख्या से अधिक इस दुनिया, यह स्थिति भूख से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। यह स्थिति इस दुनिया को कहाँ ले जाएगी, कहाँ ले जाने वाली है, यह भी बहुत सोचनीय है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर हम इस दुनिया को सबके रहने लायक और बचाए व बनाए रख सकते हैं। जीने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत यही है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए केवल उतना ही उपयोग करें जितने से हमारा जीवन व कार्यक्षमता बनी रह सके। हम लोग उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में पिछले 6 दशकों से गांधी जी की इस सीख को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हुए हैं। आम आदमी के गरिमापूर्ण जीवन एवं प्रकृति के साथ उसके सतत अस्तित्व तथा जटिल अंतरंग संबंधों को समझने और समझाने में लगे हैं। 70 और 80 के दशक में वहाँ घटित प्राकृतिक आपदाएं तथा उसके कारणों को समझने के साथ साथ हमने कुछ रचना और सुधार के कार्य आरंभ किए, जिससे चिपको आंदोलन का जन्म हुआ, जिसमें सामान्य गांव की बहनों ने, गांव के लोगों ने कहा कि पेड़ क्यों नहीं कटना चाहिए। इसके लिए उन्हें जब पेड़ कैसे बचाएं, क्योंकि हम लोग गांधी विचार से जुड़े हुए थे, तो ऐसे कुछ लोगों ने कहा कि कुल्हाड़ी को छीनो, ट्रकों के आगे लेट जाओ, लेकिन गांधी विचार के आधार पर हमने कहा जो सौम्यतम तरीका है
गांव के लोगों ने कहा कि हम तो चिपको आंदोलन चलाएंगे, माने जो कुल्हाड़ी वाले हैं उनसे कहेंगे कि तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है तो पहले हमारी पीठ पर मारो, और हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गांव के लोग, हम लोग यहीं तक सीमित नहीं रहे। जो गांधी का था संघर्ष और रचना का काम, एक और गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष का काम चलाया, दूसरी और रचना का काम, जो गांव-गांव में चाहे चरखा हो, अन्य ग्राम उद्योगों की बात। इसी प्रकार हमने वनों को बढ़ाने का काम भी गांव के लोगों को लेकर के, गांव के जो पंचायत के प्रतिनिधि थे, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, जो विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक, इन सबको लेकर के गंगा और उसकी अनेक धाराओं में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए, और जिसके सफल परिणाम आज कई इलाकों में देखे जा सकते हैं। एक और पेड़ बचाने का माने संघर्ष का, दूसरी और पेड़ लगाने का, रचना का काम, पानी को बढ़ाने का कार्यक्रम। और हमारा सौभाग्य रहा न केवल अपने भारत के हिमालय में, बल्कि नेपाल में जो महिलाओं के द्वारा, हिमवंती आदि संगठनों के द्वारा जो काम हो रहा है, दूसरे तीसरे मुल्कों में, मुख्य रूप से जो हिमालय के हिंदू कुश से लेकर के हिमालय तक के जो ये 5-6 मुल्क हैं, वहाँ के बहनों के काम भी कई जगह हमने देखा कि बहनें आगे आई और उन्होंने इस प्रकार के काम। तो आज आवश्यकता है, गांधी ने जो रचना और संघर्ष का काम वो किया था, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे विकासशील देश है और जो गरीब मुल्क है, वहाँ पर पर्यावरण का संकट ज़्यादा है, क्योंकि जो पर्यावरणीय गड़बड़ी का ज़्यादा दुष्प्रभाव इन्हीं मुल्कों पर पड़ रहा है। तो इसके लिए आज आवश्यकता है रचनात्मक काम करने में की आवश्यकता है, चाहे वो रचना साफ सफाई का काम हो, चाहे वृक्षारोपण का काम। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से अपने नेपाल में जो भारतीय राजदूत में जो वीरगंज में ये विमर्श का आयोजन किया है, इसमें मुझे भी अवसर दिया, इसके लिए मैं फिर से आपका इस गरिमामय अवसर के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपने विचारों को रखा और आपने शुरू की बात 1956 से, जब जयप्रकाश नारायण जी से आपको गांधी जी के विचार के बारे में सुनने को मिला। आपने बहुत सही उनके बारे में कहा कि गांधी जयंती को गांधी जयंती ना चरखा जयंती के रूप में मनाया जाए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। कर्मवादी पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं है। मूर्तियों की पूजा अपनी जगह है, या एक लोगों का विश्वास होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कर्म पे बल दिया, ये चीज साफ दिखता है। आपने सही कहा कि चरखा को शक्तिशाली बनाया उन्होंने, मैनचेस्टर तक पहुंचाया, हमें सच बोलना सिखाया, हमें निडर बनाया, अपने कार्यों के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया और हमें ये सीख दी कि हम ऐसा करें। और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता को आपने बहुत अच्छे 2 लाइनों में समेटा, जो हम सबने पढ़ा है कि धरती सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन विलासिता को नहीं पूरी कर सकती। और हमें बड़ी खुशी है कि ये चीज हमें आपसे सुनने को मिला, जो आप खुद एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, आप खुद चिपको आंदोलन के फादर रहे हैं, आपसे इंस्पायर्ड हुई है ये आंदोलन। वृक्षारोपण के बारे में आपने कहा, उनके विचार, साफ सफाई के बारे में आपने कहा, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हम सबको ये चीजें बताई। अब मैं आप लोगों के सामने परिचय करवाऊंगा हमारे नेपाल से जो नए स्पीकर हैं, श्री चंद किशोर, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप नेपाल के जाने माने गांधीवादी पत्रकार हैं। अहिंसा, शांतिपूर्ण तरीका और संवाद को सामाजिक रूपांतरण का विशेष उपकरण मानते हुए इसके लिए आपकी लेखनी सदैव समर्पित रहती आई है। नेपाल में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपकी लेखकीय प्रतिबद्धता रही है। नेपाल की सामाजिक विविधता को राष्ट्र का अमूल्य संपदा मानते हैं और इसके लिए संवाद और सामंजस्य पर आपकी जोड़ रही है। आप यूएनडीपी के तरफ से विभिन्न समुदायों के बीच संवाद सहजकर्ता की भूमिका कर रहे हैं और कर चुके हैं। आपके नेतृत्व में सत्याग्रह अभियान संचालित है, जो संचार माध्यम का अहिंसात्मक भूमिका पर केंद्रित है। आपको इस प्रयास के लिए माजा कोने अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्री चंद किशोर साहब, अब आप बोलें प्लीज। धन्यवाद। भारत सरकार के नेपाल के वीरगंज, वह वीरगंज जो गांधी के भारत में प्रथम प्रयोग जो चंपारण में हुई थी, उस चंपारण से जुड़ा हुआ सरहदी इलाका,
बीरगंज, जहां भारत सरकार का यहाँ महावाणिज्य दूतावास कार्यालय है। उसके वाणिज्य दूत नीतीश कुमार जी, मुख्य वक्तागण, विशिष्ट वक्तागण, देवी और सज्जनों जो इस कार्यक्रम को अवलोकित कर रहे हैं। सबसे पहले जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके लिए मैं महावाणिज्य दूत कार्यालय को इस वर्चुअल संवाद के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन विशिष्ट महानुभावों को जो गांधी को जी रहे हैं अपने जीवन में, उनका सुनने का प्रत्यक्ष रूप से अवसर मिला और उनके साथ बोलने का अवसर मिला। मैं उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं महात्मा गांधी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जब हम गांधी को याद कर रहे होते हैं तो गांधी अतीत का वह पात्र सिर्फ नहीं होता है, गांधी को हम एक प्रयोग के रूप में याद कर रहे होते हैं। गांधी को जब हम स्मरण कर रहे होते हैं तो एक पगडंडी को हम स्मरण कर रहे होते हैं, और गांधी को जब हम याद कर रहे होते हैं तो एक परिक्रमा कर रहे होते हैं, एक चिंतन का, एक दृष्टिकोण का, एक नजरिया का, और उसका पुण्यता प्राप्त कर रहे होते हैं। गांधी को स्मरण कर कर हम स्वयं धन्य हो रहे होते हैं, स्वयं अपने जीवन में आलोक प्राप्त कर रहे होते हैं। इसलिए जब जब गांधी की बात होती है उससे गांधी की महत्ता नहीं बढ़ती, हम अपने आप को धन्य मानते हैं। आज जिस तरह से यह कार्यक्रम नेपाल में हो रहा है, इससे ये दिखाता है कि निश्चित रूप से महात्मा गांधी भौतिक रूप से उनकी जन्म भारत की धरती पर हुई थी, लेकिन यह भी कहना होगा कि भारत की ओर से विश्व मानवता के लिए सर्वोत्कृष्ट उपहार के रूप में महात्मा गांधी विश्व को दिया गया था। इसलिए महात्मा गांधी विश्व नागरिक हैं। महात्मा गांधी कोई अवतारी पुरुष नहीं थे, न उन्हें अवतार बनाया जाना चाहिए। वो हमेशा अपने आप को एक आम आदमी, एक इंसान, एक भौतिक चोला ग्रहण किया हुआ आदमी अपनी साधना से, अपने तप से, अपने दृढ़ता से, अपनी अटलता से वो साध्य की ओर बढ़े, लक्ष्य की ओर बढ़े, जिससे किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक महादेश के लिए नहीं, आज पूरे विश्व के लिए वो आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। इसलिए भी वो विश्व नागरिक हैं और हमें याद करते हैं। लेकिन जब हम गांधी को आज के इस महामारी, महाव्याधि के संक्रमण काल में हम उनको स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो मुझे चार्ल्स डिकिंस का वह उपन्यास का स्मरण हो आता है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, अंग्रेजी की उपन्यास है। उस उपन्यास में चार्ल्स डिकिंस कहते हैं कि यह सबसे अच्छा वक्त था, वह सबसे बुरा वक्त था, वह ज्ञान का युग था, वह मूर्खता भरा युग था, वह प्रकाश का दौर था, वह अंधेरा का दौर, वह तो आशा भरा बसंत था, वह निराशा भरी शीत थी। ठीक आज मुझे चार्ल्स डिकिंस की जो विरोधाभासपूर्ण स्थिति है अपनी कालखंड के बारे में जो उन्होंने परिभाषित की है, अभिलेखांकित की है, आज भी हम उसी चौखट पे हैं। एक तरफ ये जो कोविड महामारी के कारण से, महाव्याधि के कारण से विश्व का क्या विपन्न, क्या विकसित, क्या उन्नत देश, हर नागरिक इससे संक्रमित हो गए हैं, डरे हुए हैं, और विश्व में मूलतः 4 तरह का संकट आया हुआ है। एक तो कोविड महामारी से लोग आहत हैं, डरे हुए हैं। दूसरी एक आर्थिक मंदी है, वह आर्थिक मंदी जो पिछले दशकों में विश्व भर में हमने ग्रहण किया, एक दृष्टिकोण को, एक विचारधारा को, जिसकी जो अपनी आप असफलता की कसमसाहट से गुजर रही है। तो आज आर्थिक मंदी का जो दौर है वो अपने आप में एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही है कि हमें किस दिशा में जाना है। दूसरा, जैसे कि आदरणीय चंडी प्रसाद भट्टी जी कह रहे थे कि पर्यावरण का संकट वह विश्व के लिए है। हम हिमालय के देश के हैं, हम सगरमाथा के धरती से हैं, लेकिन विश्व भर में जहाँ कहीं भी विश्व की जो मानवता है वह पर्यावरण के संकट से गुजर रहा है। और दूसरा, आज भी कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई राष्ट्र, कोई रंग के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और इसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव है। कहीं सशस्त्र संघर्ष हो रही है, कहीं शांतिपूर्ण संघर्ष हो रहा है। लेकिन यही स्थिति, यही तनाव का स्थिति है, चिंता की विषय है। वहीं हमें कुछ आशा की किरणें भी दिखाई पड़ती है, वहीं कुछ हमें इस अंधेरा में कुछ उजाला भी दिखाई पड़ता है। हम जुगनू की तरह कुछ लोगों को देख पाते हैं। आज अभी हम लोगों ने सुना चंडी प्रसाद भट्ट जी वो साक्षात अपने आप में गांधी को जी रहे हैं। गांधी की जीवन बड़ी विराट थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो युग पुरुष थे, सार्वजनिक जीवन के तमाम क्षेत्रों में उनकी क्रियाशीलता रही, प्रतिबद्धता रही, उनका विचार रहा, स्वयं उनका जीवन प्रयोग रहा।
वो पल पल को जी रहे थे। तो हम विराट गांधी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक बामन गांधी तो बन सकते हैं, छोटा गांधी तो बन सकते हैं। चंदी प्रसाद भट्ट अपने आप में एक छोटा गांधी का प्रयोग कर रहे हैं। आज लोग जल के लिए, जंगल के लिए, भूमि के लिए, विपन्न नागरिकों के लिए, शांति और सद्भाव के लिए विश्व में कहीं भी कोई भी अगर कोई प्रयत्न करता है तो वह गांधी को जी रहा होता है। वह छोटा गांधी होता है जो हमारे कालखंड में, हमारे इस समय में, इस संधि काल में हमारे समक्ष मौजूद है। मेरे बाद नेपाल के माननीय वक्ता दमननाथ ढुंगाना जी बोलेंगे। जब नेपाल में आप सभी को मालूम है कि माओवादियों का सशस्त्र संघर्ष हुआ था जिसे हम लोग जनयुद्ध कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा है, इतिहास को हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन नेपाल में इतिहास को बनते देखा गया है। दमननाथ ढुंगाना जी जो नेपाल के संसद के 90 में जब लोकतंत्र की पुनर्बहाली हुई उसके प्रथम स्पीकर रहे हुए हैं। अभी पिछले दशक में उनकी नेपथ्यकारी भूमिका रही, उनकी सहजीकरण की भूमिका रही। माओवादी जनयुद्ध छोड़कर मूलधार की राजनीति में आया, शांतिपूर्ण प्रक्रिया को अवलंबन कर आम राजनीति में आया। यह जो प्रश्न हो रहा है, मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि नेपाल में गांधी को जी रहे। अगर पुरुषोत्तम दाहाल जी या वर्षा दत्त दास जी अगर शांति के क्षेत्र में, सद्भाव के क्षेत्र में, सामंजस्य के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, वो गांधी का काम कर रहे हैं। गांधी का जीवन तो महासागर है। हम महासागर से अगर एक लोटा भी अगर ले आते हैं, आज की मानवता को हम अर्पित करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी पुण्यता दिखाई पड़ेगी। इसलिए यह विरोधाभास का अवस्था है। गांधी जी में अनेक गुण थे, लेकिन सबसे बड़ा गुण यह था कि वो अपनी 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 भीतर के चीजों को छुपाना नहीं चाहते। जो है भीतर वही बाहर है, कथनी और करनी में अंतर नहीं था। आज सार्वजनिक जीवन में हम देखते हैं लोग किस तरह से आवरण में ढके हुए हैं। गांधी की पात्रता आज इसलिए भी पूज्य है कि गांधी ने जो कुछ सम्यतम अहिंसक प्रतिकार के रूप में जो आज विश्व को दृष्टि मिला हुआ है, वह इसलिए है कि गांधी जो कहते थे वो करते थे, जो करते थे वो कहते थे, और अपने आप को नूतन प्रयोग करते रहते थे। और इसीलिए वो कहते थे कि मेरे बाद मेरे जीवन को प्रयोग को माना जाए, और वह प्रयोग जो जीवन के अंत में मैंने किया, बाद के दिनों में किया, तो कल किया वो नहीं, आज मैं जो कर रहा हूं उसके आधार पर आप मेरे बारे में समझने की बात करें। छोटा छोटा घटना, वो पल पल को जीते थे, पल पल में उनके उच्च मानवता, उच्च मानवीय व्यक्तित्व उनकी दिखाई पड़ते। मैं एक छोटा सा घटना सुनाना चाहता हूँ। गांधी विभिन्न तरह के लोगों से मिलते थे। आप देखेंगे वो बकरी पालन करते थे, खेती पाती के काम करते थे, किचन के कामों में जुट जाते थे, आश्रम में छोटा छोटा काम में, किसी का घरेलू काम है उसमें वो पत्रचार करते थे। तो हर तरह के लोग उनसे मिलते थे, हर लोगों से पत्रचार होती थी। एक बार एक बच्चा आया उनसे मिलना, विद्यार्थियों का एक समूह आया, और वो लोग आकर गांधी जी से बातचीत कर रहा था। एक बच्चा मन है, उसने कहा, गांधी जी आपको कुर्ता आपके पास नहीं? अब हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के बारे में वो चर्चिल का है ना, एक अर्धनग्न फकीर, वो जो चंपारण से लौटते वक्त वो अपनी वस्त्रों में विधविता कर दिए थे, और बड़ी शादी आ गई उनकी जिंदगी में जो आजीवन रही। तो कहा कि गांधी जी आपके पास कुर्ता नहीं है? तो गांधी जी बोले, देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने माँ को कहकर आपके लिए कुर्ता ला देता हूँ। तो मेरे लिए कुर्ते ला दोगे? कहा कितने कुर्ते लाओगे? तो बच्चा ने कहा 2, 3, 4। तो गांधी जी कहे, नहीं नहीं, मेरा परिवार छोटा नहीं है। आज के दिन में मेरे पास 40 करोड़ का परिवार है, भारत की उस समय की आबादी। तो सबों के लिए मेरे लिए अगर कपड़ा ला सकते हो तो मान ला। गांधी जी बच्चा के, मासूमियत बच्चा के मन में परिवार का, विश्व बंधुत्व का, विश्व से हम कैसे जुड़े हुए हैं, वह बात जो है, वह संदेश जो है, एक छोटी सी घटना से होती थी। तो मैंने कहा ना कि वो पल पल में छोटी छोटी बातों से लोगों को जीवन में वो सिखाते रहते थे। गांधी जी के लिए वो एक मुट्ठी नमक तो दंडी मार्च के बाद में उन्होंने उठाया था। चरखा क्या है? चरखा तो एक छोटी सी उपकरण है ना, काठ का उपकरण है, कोई बड़ा उसमें वैज्ञानिक चमत्कार भी नहीं। या खादी ही जो जिसकी बात अभी पूर्व वक्ता लोग कर रहे हैं, एक खादी अपने आप में एक अर्थशास्त्र बन गई, खादी अपने आप एक जीवन पद्धति बन गई, खादी अपने आप में भारतीय आत्मनिर्भरता का विषय बन गया, खादी अपने आप में साम्राज्यवादी शक्तियों को कमजोर करने का उपकरण बन गया, अहिंसक उपकरण बन गया। तो वह एक छोटा छोटा प्रयत्न करते थे, लेकिन उसकी बड़ी बहुआयामिक, बड़ी विराट उसका प्रभाव हुआ करता था।
ठीक गांधी उसी तरह से जीवन में कहा करते थे कि घृणा को घृणा से, द्वेष को द्वेष से दूर नहीं किया जा सकता है। इसे मिटाने के लिए हमें प्रेम को लाना होगा, सद्भाव को लाना होगा, अपने आप में सहिष्णुता को लाना होगा। जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनसे सिर्फ प्रेम नहीं करें, जो हमसे प्रेम करता है उससे अगर हम प्रेम करते हैं, उसके प्रति अगर उदार हम हैं, तो यह अहिंसा नहीं है। अहिंसा तो वो है जो हमसे द्वेष करता है, जो हमसे नफरत करता है, उनसे भी हम अगर प्रेम करें तो सच्ची अहिंसा यही। गांधी जी की दैनिकी में प्रार्थना जुटी हुई थी, प्रार्थना बड़ा समयबद्ध रूप से करते थे। तो प्रार्थना में एक पल का भी विलंब उन्हें स्वीकार नहीं था, वो समय के साथ चलते थे। उनकी नरसिंह मेहता की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने। गांधी जी के प्रिय भजन थे। आप गांधी जी आश्रम में होने वाली भजनावलियों को भी देखें तो आज जो विश्व का जो जितने भी पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक दर्शन है, या धर्म या आध्यात्मिक चिंतन है, सबको उसमें पिरा दिया गया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, मैं सिर्फ इसका बात करूँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। जो दूसरे का दर्द समझता हो, कौन दर्द? गोरा काला का समझता हो, काला गोरा का समझता हो, एशिया का दर्द पश्चिम के लोग समझता हो, पश्चिम के लोग अफ्रीका के लोग समझते हो, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र को, एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण को, एक जाति के लोग दूसरे जाति को, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय का, अगर हम उसकी दर्द को समझते हैं, उसकी पीड़ा को समझते हैं, उसके मानस को समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे एक समता आएगा, समानता आएगी, उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, उससे एक आत्मीय अनुराग उत्पन्न होगी और वो आदमी लगेगा कि अगला आदमी तो हमारा हितैषी है। गांधी का यह जो चिंतन है, आज मुझे लगता है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप में कोई भी राष्ट्र विभिन्न झंझावातों से जो गुजर रही है, उस द्वंद्व को समाधान करने के लिए यह दृष्टिकोण को पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती है। इसको द्वंद्व समाधान में, शांति प्रक्रिया के चिंतन में यह एक सूत्र के रूप में आ सकता है, लेकिन यह एक बड़ी बात है जो मुझे लगता है। गांधी जी किस तरह से अपने विरोधियों के प्रति, असहमत के प्रति सहिष्णु रहते थे, उदार रहते थे। मैं एक और घटना यहाँ निवेदन करना चाहूंगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था, उनका प्रयोग शुरू हो गया था, उनका सत्याग्रह शुरू हो गया था अपने तरीका से। वो सामुदायिक जीवन जीना शुरू कर दिए थे दक्षिण अफ्रीका में। इसलिए गांधी सिर्फ भारत का नहीं है, विश्व के है। तो गांधी वहां भी कई बार उनको जेल जाना पड़ा, तो जेल जाते रहते थे। तो जेल में वो नव नव प्रयोग कर रहे होते थे, तो वहां उन्होंने जूता बनाने का, सैंडल बनाने का काम उन्होंने सीखा। सैंडल बनाते थे। 1913 में 15 जोड़ सैंडल बना चुके थे गांधी। जब भारत आए, गांधी आश्रम में, सेवा आश्रम में वो थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी मिलने आए, तो देखा कि वो जूता बनाने के प्रशिक्षण दे रहे हैं युवाओं। गांधी इस तरह से हर काम को उतनी ही प्राथमिकता देते थे, श्रम की गरिमा को महत्व देते थे, इसलिए स्वयं श्रम करते थे। उनका कहते वो गीता पाठी थे और क्या श्रम की मूल्य को, श्रम को यज्ञ समझते थे। तो उन्होंने एक जेलर था जनरल स्मर्ट्स, वो जनरल स्मर्ट्स जो है उनको बार बार उनको जेल पठा रहा था। गांधी जी ने सैंडल बनाया और उसको उपहार पठाया। जब गांधी जी 1915 में वापस आ रहे थे भारत के लिए, उनके उपहार के रूप में दिया। बाद के दिनों में वो जनरल, जब गांधी जी भारत में आए, एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे, उन्होंने पत्र लिखा कि आज मैं वो दक्षिण अफ्रीका में संग्रहालय को अर्पित कर दिया हूँ, तो मुझे लगा कि इतना उच्च कोटि का आदमी जो सैंडल बना कर दिया है, उसमें मैं पांव रखूं, ये मेरी आत्मा नहीं मानती। तो यह जो प्रतिपक्षी था, जो उन गांधी जी के प्रति अनुदार था, उसके दृष्टिकोण में भी, हृदय में भी परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। तो यह बंदूक के माध्यम से आप किसी का हृदय परिवर्तन नहीं करा सकते, शांतिपूर्ण संवाद से, सामंजस्य से ही हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज मुझे लगता है दुनिया में गांधी इसलिए प्रासंगिक है कि गांधी जो है हमें वंचित समूह का बृहत्तर परिचालन करने का उन्होंने सिखाया। गांधी जी उस जमाने में जब संचार के साधन नहीं थी, बड़े पैमाने में लाखों और करोड़ों भारतीयों को उन्होंने परिचालित कर दिया। यह इसके लिए उनकी संवाद की कला, संगठन की कला, आम जन से, विपन्न जन से अपने आप को जोड़ने की कला थी, वह महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने जो आज भी गांधी जी ने मौलिक किताब कम लिखी जिसमें हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज तो सभ्यता का नया दर्शन है। वह गांधी जी का जो चिंतन है, प्रयोग है, वह तो निर्बलों के लिए राम है, वो खास करके जो कमजोर आदमी है उसके लिए है। लेकिन गांधी जी का जो अहिंसा है
वह कमजोर का नहीं है, वह साहसी लोगों का है। हिंसा वो करता है जो मजबूर है, कमजोर है, वो कहेगा कि कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन जो सत्याग्रही होता है, जो अहिंसा का मार्ग में चलता है, वो अपने आप को दंडित करता है, वो अपने आप को पनिशमेंट करता है, वो अपने आप को दुख भोगता है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ी बृहत्तर होता है। हम जब देखते हैं कि भारत की बंटवारा हुई, कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, उस समय का जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भी स्वीकार किया कि बाकी जगहों में फौज लड़ रही थी, कलकत्ता में अर्थात कि पूर्वी भारत में एक अकेला गांधी का फौज था, वन मैन फौज। तो गांधी का जो उपवास था, गांधी का जो अहिंसक प्रयोग था, गांधी को सामंजस्य स्थापित करने का जो तरीका था, और बड़ी बृहत्तर जनता से वो जो संवाद कर लेते थे, इससे वहां शांति स्थापना हुई। तो आज भी यह जरूरत है। दूसरा, सत्ता से प्रतिरोध में निर्भय चाहिए, साध्य और साधन दोनों की सूचिता आज के पक्ष में जरूरत है। अस्पृश्यता से मुक्ति और स्वराज्य और सर्वोदय, जो अंतिम आदमी है उसका उन्नति जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा ही रहेगा। तो समरस समाज की स्थापना के लिए सामंजस्य बड़ी महत्वपूर्ण है। गांधी समाज से भी पहले, राष्ट्र से भी पहले व्यक्तिगत शुद्धता में बात करते थे। तो व्यक्तिगत जीवन की सूचिता पर उनका दृष्टिकोण था। धन का विवेकपूर्ण नियमन के वो पक्षधर थे, और अहिंसा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, क्योंकि आज भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करने के लिए विश्व में कहीं भी अगर लोग प्रयत्न कर रहे होते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, शांतिपूर्ण संघर्ष होता है, संवाद की बात होती है, वहां गांधी जी रहे होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गांधी एक शताब्दी के लिए नहीं, आने वाली विश्व के लिए एक धरोहर है, एक मार्ग स्तंभ है। गांधी के इन्हीं चिंतनों के आधार पर भारत हमें कहे तभी हम गांधी को याद नहीं करें। हम जब तनाव में हो, हम जब द्वंद्व में हो, हम जब सत्ता से जूझ रहे हो, हम समाज को लोकतांत्रिक बनाने की प्रयत्नशील में हो, वहां कहीं भी अगर हम बात बोलते हैं, सोचते हैं, तो वहां गांधी हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं विचार के रूप में। इसीलिए भौतिक गांधी से आज विचार का गांधी, आज पगडंडी का गांधी जो एक प्रयोग किया था गांधी, वो अधिक हमारे लिए पुण्य रखते हैं, हमारे लिए अधिक अमृत तुल्य है और संजीवनी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आपने मुझे मौका दिया। गांधी को हम अपने जीवन में जीने की कोशिश करें, हम अपने समाज में जीने की कोशिश करें, और समाज ही नहीं विश्व को जोड़ें, क्योंकि कोविड ने हमें दिखा दिया है कि विश्व का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से अभिन्न नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने कहा था विश्व वसुधैव कुटुंबकम, आज वो बात हो गया है। लेकिन ये बात भी है कि लोकल वोकल, जो स्थानीयता है, जो 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 जहाँ क्षेत्रीयता है, वो अपने आप को मजबूत करना पड़ा, सशक्त करना पड़ा। उसके लिए भी आज की जो संकट है, हमें गांधी की ओर जाना होगा। और अंत में पुनः पुनः आप लोगों को विदा लेना चाहता हूं। जय जगत। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रकिशोर जी, आपने बहुत सही शुरुआत की कि हम चंपारण के काफी करीब हैं फिजिकली, वीरगंज, इसलिए हमें जरूर इस चीज का आयोजन करना चाहिए था। तो आपका ही ये ब्रेन चाइल्ड था इवेंट, इसलिए इसके लिए आपको एक और बार हमारी तरफ से शुक्रिया। आपने ये भी बात बिल्कुल सही कही कि गांधी एक अवतारित पुरुष नहीं थे, एक सामान्य मानव थे। लेकिन अगर वो इतने सामान्य थे और उनकी जो असामान्य बातें थी वो भी आपने बहुत प्रासंगिक तरीके से कहा। आपने चार्ल्स डिकन की बात कही, टेल ऑफ टू सिटीज के बारे में रेफर किया, पर्यावरण संघर्ष के बारे में आपने बात कही, सार्वजनिक जीवन में किस तरह से गांधी सक्रिय थे इस पे आपने प्रकाश डाला। और आपने बहुत सही कहा कि हम सब मिलकर प्रयत्न कर सकते हैं एक वामन गांधी बनने की, एक ड्वार्फ गांधी बनने की, क्योंकि उनकी विराटता को हासिल कर पाना हम सबके बूते की बात नहीं है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि गांधी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था, वे नित्य नूतन प्रयोग करते थे। आप शुरू से था, कभी हुआ। और आपने वामन गांधी के बारे में कहा, नूतन प्रयोगों के बारे में कहा, पल पल जीने की बात कही, विभिन्न तरह के लोगों से मिलने की बात कही, चर्चिल के अर्धनग्न फकीर वाले वक्तव्य को कहा, खादी, नमक, जेल जैसे संदर्भों को आपने रखा, और आपने उनके अहिंसा के सिद्धांत को दोहराया, जिसमें आपने बहुत सही कही कि लव द हेटर वाली जो बात है कि आप अपने घृणा करने वालों से प्यार कर सको, तो यही अहिंसा है। और आपने उनके वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना का भी संदर्भ दिया, जो कि उनका सबसे मनपसंद भजन था। आपने हिंद स्वराज की बात की, उनकी मूल लेखनी की, और आपने कलकत्ता राइट्स का भी जिक्र किया, और आपने बहुत सारे प्रसंगों को छेड़ा जिसको दोहरा पाना मेरे लिए इतने कम समय में संभव नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। अब मैं
आप लोगों के सामने अपने जो नए स्पीकर हैं उनके बारे में थोड़ा जीवन परिचय देता हूं। श्री दमन नाथ ढुंगाना, आप नेपाल की लोकतांत्रिक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। विद्यार्थी जीवन से ही आपने अपने को देश सेवा में समर्पित कर दिया। इस क्रम में आप अनेकों सरकारी दमन का शिकार हुए, फिर भी आप अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। जब नेपाल में सन 1990 में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हुई, उसके बाद निर्वाचित प्रथम संसद के आप स्पीकर रहे। संसद का कुशल संचालन करते हुए आप सदन में विपक्ष की भूमिका को सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं। नेपाल की संसदीय इतिहास में आपका कार्यकाल मील का पत्थर माना जाता है। माओवादी संघर्ष के समय उन्हें मूल धारा में शामिल करने के क्रम में आपकी मुख्य सहजकर्ता की ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। शांति प्रक्रिया में आपकी सहभागिता से आज माओवादी शक्ति नेपाल की लोकतांत्रिक राजनीति का एक हिस्सा बनना संभव हो सका है। आप वंचित समुदाय के न्याय और अधिकार की लड़ाई में प्रखर रहे हैं। शांति सद्भाव आपकी जीवन दृष्टि रही है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए आज भी आप शांतिपूर्ण माध्यम से क्रियाशील रहते हैं। आप नेपाल के अग्रणी नागरिक अगुवा हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बात को बड़े विश्वसनीय नागरिक समाज की आवाज माना जाता है। श्री मदन नाथ ढुंगाना सर, प्लीज सर, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। Thank you for your comments. If I deserve, I am like that, you know, I want to be something better than what I have been in the past. Thank you for your compliments. You know, I think for the sake of my audience, Nepali audience, and also I think considering that, you know, Nepali, the way I speak would not be that difficult for our Indian friends also to understand. And as we are not that used to Hindi speech, so I just beg excuse from the organizers that I am allowed to speak in my native language. Please, sir. आयोजक महोदयहरू धन्यवाद। नितेश कुमार जी, चन्द्रकिशोर जी, मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा यो आयोजकहरू सबलाई धन्यवाद। यो सुरुमा बोल्ने पुरुषोत्तम दाहाल जी, त्यसपछि वर्षा दास जी, चण्डी प्रसाद जी, अनि अझ विशेष गरी त यो चन्द्रकिशोर जीको त साँच्चै सशक्त प्रस्तुति भयो। र गान्धीजीको बारेमा म पनि एउटा सामान्य अध्येता हुँ, तर आज धेरै नै कुरा अझ बढी जान्न पाएँ र यो कार्यक्रम मेरो लागि बडो प्रेरणादायी भएको छ। सबैलाई धन्यवाद। अब यहाँ गान्धीजीका बारे धेरै कुरा आयो। म आफ्नो धारणा, आफूलाई लागेका कुरा कसरी हेर्दछु म गान्धीजीलाई भन्ने बारे के संक्षेपमा मात्रै शुद्धबुद्ध राख्न चाहन्छु र के अलिकति समय चाहिँ नि म चाहिँ यो सान्दर्भिकतामा जान चाहन्छु, किनभने सान्दर्भिकताको चाहिँ नि कुरा आएन, खास गरी अझ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमै पनि। गान्धीजी सबभन्दा ठुलो कुरो मैले हेर्दाखेरि के छ भने यो सीमाहरू हुन्छ नि, व्यक्तिका, धर्मका, राष्ट्रका, त्यो सबैबाट उठेको मान्छे हो, ट्रान्सेन्ड गरे भन्छ नि, जो सबै त्यो सीमा नागेको त्यो विश्वव्यापी दृष्टिकोणको मान्छे हो, जसलाई ह्युमेनिस्ट भनिन्छ, मानवतावादी हो। त्यस कारण गान्धी यद्यपि पोरबन्दरमा जन्मनुभयो, साउथ अफ्रिकाको लागि काम गर्नुभयो, भारतको स्वतन्त्रताको लागि काम गर्नुभयो। भारतको स्वतन्त्रता भनेको हाम्रो क्षेत्र र विश्वका सबै चाहिँ नि स्वतन्त्रताका लडाइँहरूको एउटा प्रेरणा स्रोत पनि हो, त्यसको लागि काम गर्नुभयो, सबैको स्वतन्त्रताको लागि। तर उहाँलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि भारतमा सीमित गर्न सक्दैनौँ। उहाँ चाहिँ नि विश्व स्वतन्त्रताकै एकजना योद्धा हो। त्यसै भएर हामी उहाँलाई चाहिँ नि विश्व नागरिक भन्दा पनि एउटा युनिभर्सल म्यान भनेर चिन्दछौँ, त्यो विश्व मानव। किनभने उसका जे जति कामहरू, चिन्तनहरू, सेवाहरू, योगदान भएका छन् त्यो मानव मुक्तिका चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा भएका छन् र मानवको सार, मानव मुक्तिको सार भनेको त्यो हरेक धर्ममा धेरथोर पाइन्छ। र गान्धीजी पनि उहाँको सबभन्दा ठुलो एउटा व्यक्तित्व र चिन्तन प्रणालीको स्रोत, विकासको स्रोत चाहिँ नि
त्यो आध्यात्मै हो। उहाँ त आमाबाट अझ बढ्ता प्रभावित भन्नुभएको छ। संस्कार निर्माण हुन्छ परिवारबाट, त्यो उहाँले परिवारबाटै उहाँको निर्माण भएको छ। त्यसपछि अध्ययन गर्नुभयो, दक्षिण अफ्रिकालाई कार्यक्षेत्र बनाउनु भयो, भारतमा आउनुभयो 1914-15 त्यसपछि 48 सालसम्म, अन्तिम दिनसम्म जनवरी 30 सम्म उहाँ आफ्नो कर्तव्य पथमै लाग्नुभयो। यो जम्मै सङ्घर्ष गाथालाई हेर्दाखेरि के देखा पर्छ भने उहाँ देशको स्वतन्त्रताको लागि मात्रै लडेको व्यक्ति होइन, उहाँ मानव स्वतन्त्रताको लागि लडेको व्यक्ति हो। त्यसकारण चाहिँ नि उहाँ मलाई लाग्छ यति एउटा सान्दर्भिकता छ उहाँको, झन्झन बढ्दै गइरहेछ। अघि नै सुरुमा वर्षदासजीले भन्नुभयो नि टाइमलेसनेस भनेको, उहाँलाई कहीँ टाइमभित्र सीमित गर्न सकिँदैन, त्यो समयातीत हुनुहुन्छ, बियोन्ड टाइम, टाइमलेस हुनुहुन्छ। तर त्यो गान्धी केले त्यो गान्धी बनाएको थियो? तर त्यस कारण उहाँको पारिवारिक संस्कारका अतिरिक्त उहाँले सबै धर्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु र सबै धर्मको एसेन्स सार तत्त्व ग्रहण गर्नु, त्यसले उहाँको चरित्र चिन्तन निर्माण गरेर पाइन्छ। जस्तो कि मानिसभित्र त्यो एउटा खराब तत्त्व पनि हुन्छ, असल तत्त्व पनि हुन्छ, र मानिसको जीवनको सबभन्दा ठुलो लक्ष्य भने के हो? त्यो खराब तत्त्व जुन डेभिल भन्छ, त्यो इभिल एलिमेन्ट्सहरू हो, त्योसँग लड्ने हो। त्यो मानव मात्रमा छ। आज संसारका दुःखका कारणहरू, द्वन्द्वका कारणहरू, हिंसाका कारणहरू, गरिबीका कारणहरू के भइरहेछन् भने शोषणका प्रवृत्तिहरू। किनभने त्यही मानिसै असल छ, मानिसै खराब छ। मानिसले मानिसलाई शोषण गरिरहेछ, मानिसले मानिसलाई दुःख दिइरहेछ, मानिसले मानिस मारिरहेछ, देशमा लडाइँ भइरहेछ, देशको परस्पर लडाइँ भइरहेछ। यो सब के छ भने मानिसभित्रको त्यो खराबी जुन छ, त्यो चाहिँ नि दानवीयता भन्नुहोस्, इभिल एलिमेन्ट हो, त्यसलाई दूर गर्नु चाहिँ नि मानवको कर्तव्य हो। त्यस कारण गान्धीजीको सम्पूर्ण जीवन समर्पण मैले बुझ्दाखेरि के छ भने त्यो कुनै देशसँग त्यो सीमाबद्ध छैन, त्यो मानव जाति नै उहाँको चाहिँ नि कार्यक्षेत्र हो। त्यसै भएर उहाँले जति गर्नुभयो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसेर जीवनकालमा, उहाँको सङ्घर्ष गर्दा नै त्यो मानव जीवनलाई कसरी मुक्ति दिने, र त्यो आध्यात्मिक मुक्ति होइन, र आधुनिक जमानाको मुक्ति हो। आधुनिक जमानाको मुक्ति भनेको मानव अधिकारको सम्मान हो, मानव मर्यादा हो। जस्तो अघि पूर्ववक्ताहरूले भन्ने हो खाद्यको अधिकार, संविधानले बाँच्ने अधिकार भन्छ, तर ऊ खाद्य पाइरहेको छैन। ओपन थिएटरमा कोरोनाको कारण चाहिँ नि हजारौँ मानिस चाहिँ नि के छ भने ज्याला मजदुरीका मानिसहरू आएर चाहिँ नि त्यो दाताहरूको चाहिँ नि खाना खाइरहेछ। त्यस कारण यो सम्पूर्ण गान्धीजीको चिन्तन प्रक्रिया के छ भने मानव अधिकार सम्मत छ, मानव मुक्ति सम्मत छ। त्यो राष्ट्रको मुक्ति भनेको त्यो एउटा सामान्य क्षेत्र मात्रै हो, त्यहाँ मानिस छन्, त्यो मुक्त हुनुपर्छ, त्यो मात्रै हो। त्यस कारण चाहिँ नि हामी नेपाली पनि आभार छौँ, र सबै चाहिँ नि एउटा उपनिवेशकालीन देशहरू हामी आभार छौँ। किन गान्धीले जुन किसिमले अहिंसक आन्दोलन सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यो एउटा स्वतन्त्रताको लहरै आयो। त्यसमा गान्धीजीको जुन माध्यम हो, अहिंसक माध्यम, त्यो एउटा मोडलै बन्यो। त्यसमा चाहिँ नि मार्टिन लुथर किङले पनि धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ, मण्डेलाले प्रशंसा गर्नुभएको छ, हालै ओबामाले गर्नुभएको छ, आङ सुचीले गर्नुभएको छ, पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ नि सारा संसारकै एउटा मिसाल हुनुभयो। ठुल्ठुला शक्तिहरूसँग कसरी लड्ने, खराबी एलिमेन्ट्सहरूसँग कसरी लड्ने, कसरी मानिसमा एउटा डिभिनिटी, त्यो मानवीयता, दैवत्वको विकास गर्ने छ। त्यहाँ मानिस पोटेन्सियल छ, त्यो पोटेन्सियल छ मानिसमा, त्यो कसरी उजागर गर्ने हो। मानिसको गान्धीजीको आजीवन त्यो चाहिँ नि तपस्या त्यसका लागि हो। त्यसकारण चाहिँ नि गान्धी एक देशको होइन, सर्वदेशीय हो। त्यसकारण गान्धीजीको नाम मानव मुक्ति र मानव अधिकारको पर्याय हो, र उहाँ नम्बर 1 चाहिँ नि ह्युमेनिस्ट हो। उहाँले मानव जातिका लागि सोच्नुभयो, मानव मुक्तिका लागि काम गर्नुभयो।
यो अरू पक्षमा म जान चाहन्न। अब आज सान्दर्भिकताको पक्षमा म केही समय लिन चाहन्छु। म अन्तिम वक्ता भएकोले यसलाई बिस्तारै चाहिँ नि टुङ्ग्याउनु नै उपयुक्त होला। एकछिन हामीहरू सोचौँ, एक साह्रै ठुलो गर्वको कुरा छ। गान्धीजीको निधन 48 जनवरी 30 मा भयो र यो 2007 को चाहिँ नि जुन 15 हो क्यारे सायद, त्यो दिन चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 142 देशको समर्थनमा एउटा प्रस्ताव पास गर्यो गान्धी जयन्तीलाई यो विश्व अहिंसा दिवस पनि मनाउने भनेर। अब यसैबाट बुझ्न सकिन्छ एउटा भारतबाट दक्षिण अफ्रिका कार्यक्षेत्र भएको गान्धी कसरी चाहिँ नि एउटा विश्वको लागि आवश्यक हुनुभयो र प्रत्येक हुनुभयो। के को प्रत्येक? र फेरि एउटा संयोग पनि जोड्छ। डिसेम्बर 10 मा चाहिँ नि मानवाधिकार घोषणापत्र भयो 48 को। 48 कै जनवरी 30 मा गान्धीजीको निधन भयो। भनेको गान्धीजी त्यो मानवाधिकार घोषणापत्र विश्वव्यापी नघोषणा हुन्जेलसम्मलाई बाँच्या हो कि जस्तो पनि एउटा लाग्दछ, कता कता संयोग नि। त्यसकारण चाहिँ यो मानवाधिकार घोषणापत्र र गान्धीको जीवनको एउटा त्यो एउटा के भनौँ कन्टेम्पोरेरीनेस भनौँ अथवा त्यसको एउटा सामञ्जस्यता छ। र त्यसै भएर गान्धीजीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नि एउटा मान्यता दियो कि त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य किन भनेदेखि चाहिँ नि यो व्यक्ति व्यक्तिको द्वन्द्व, समुदायको द्वन्द्व अथवा अन्तर्जातीय द्वन्द्व, अन्तर्धातीय द्वन्द्व, जुनसुकै मानव समाजको द्वन्द्व किन, राष्ट्र राष्ट्रको बिचको द्वन्द्व अथवा शान्तिपूर्ण आन्दोलन कि हिंसक आन्दोलन कि अझ अहिले त आतङ्कवाद पनि धेरै विश्वमा बढिरहेछ। अहिले त अझ एउटा अणुबमीय न्युक्लियर पावरहरू पनि छन् धेरै, दोस्रो युद्धमा त बहुत कम थिए। त्यसकारण यो चाहिँ के छ भने संयुक्त राष्ट्रले सोच्यो, यो संयुक्त राष्ट्रको एउटा उद्देश्य के हो भने पिसफुल सेटलमेन्ट्स अफ डिस्प्युट्स, यो द्वन्द्वहरूको, विवादको, मतभेदको, असहमतिहरूको, चाहे व्यक्ति व्यक्तिको बिचमा होस्, समाज होस्, कुनै पनि आस्थाको विषयमा होस्, राष्ट्रहरूको बिचमा होस्, त्यो चाहिँ नि शान्तिपूर्ण संवादद्वारा हुनुपर्छ। एक अर्कालाई बुझेर, त्यो घृणा नगरेर र प्रेम गरेर, सद्भावना राखेर। त्यसकारण गान्धीजीले चाहिँ त्यसको लागि सत्यको चाहिँ नि एउटा त्यसलाई चाहिँ नि माध्यम बनाउनु भयो र सत्याग्रहलाई एउटा परिवर्तनको साधन बनाउनु भयो। र यो सत्य र अहिंसा, सत्याग्रह र अहिंसा गान्धीबाट कहिले छुटिन सक्दैन। त्यसकारण सारा संसारलाई उहाँले के दिनुभयो भने जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ त्यसको विजय हुन्छ, सत्यमेव जयते। र त्यसको लागि हिंसाबाट टाढा रहनुपर्छ। जतिसुकै शक्तिशाली चाहिँ नि शक्तिहरू किन नहुन्, जतिसुकै ठुल्ठुला इभिल फोर्सेस किन नहुन्, तिमी सत्यको अगाडि ऊ परास्त हुनैपर्छ। र उसँग जतिसुकै हिंसाको साधन भए तापनि, जति दमनकारी यन्त्र भए तापनि त्यो जनताको आत्मादेखिको त्यो सत्यमा आधारित, सत्याग्रहमा आधारित त्यो हिंसक चाहिँ नि अहिंसक तत्त्व जुन हुन्छ, त्यो मानवीय तत्त्व, त्यसको अगाडि त्यो राज्यका चाहिँ नि दमनकारी यन्त्रहरूको हिंसात्मक साधन माध्यमको केही काम लाग्दैन। जस्तो कि त्यो बेलाको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेनबाट, बेलायतबाट स्वतन्त्र आन्दोलनमा उहाँले देखाइदिनु भयो। पहिले त सोचिया पनि थिएन। भारतमा चाहिँ जब गान्धी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त जालियाना बाग भइरहेको थियो र चाहिँ नि हिंसाको बाटोबाट अङ्ग्रेजसँग लडेर स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकिन्छ कि अहिंसाको बाटोबाट, बडो विवाद बहस थियो राष्ट्रव्यापी। र हिंसाको बाटो भनेर धेरै शहीद पनि भएको थियो। तर गान्धीजी जब प्रवेश गर्नुभयो 1915 अफ्रिका छोडेर त्यहाँ सत्याग्रहको आराधना अभ्यास गरेर, त्यही बेला गान्धीजी एउटा हिरो भएर प्रवेश गर्नु भइसक्यो। र गोखलेको त अझ खास उहाँमाथि प्रभाव थियो। र उहाँले चाहिँ के छ भने 1920 मा इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसको चाहिँ नि नेतृत्व लिनुभयो। त्यस्तै अफ्रिकामा हुँदा पनि भारतीय जनतालाई, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सङ्गठित गरेर काङ्ग्रेसको गठन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि 1930 मा त नन कोअपरेसन मुभमेन्ट प्रस्ताव लन्च गर्नुभयो। र बिस्तारै 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 के हो भने गान्धीको यो बाटोबाट होला त स्वराज भनेर भन्दा भन्दै वास्तवमा को नेता अस्मत हुने कोही नेता भएन उहाँसँग। सब नेताहरू उहाँसँग सोरिँदै गए, सबै अनुयायी हुँदै गए।
गान्धीले एउटा जादुगरी चमत्कार गर्नुभयो र सबभन्दा ठुलो विशेषता के भने त्यो हिंसाबाट परिवर्तन होइन, अहिंसाबाट परिवर्तन, सत्याग्रहबाट परिवर्तन भनेर उहाँले त्यो एउटा पार्टीका कार्यकर्ता अथवा बुद्धिजीवी चाहिँ नि एउटा सीमित सुकिला सामन्ती वर्गमा होइन र आफ्नो सन्देश त्यो अहिंसा र सत्याग्रहको आम जनतामा पुर्याउनु भयो, बुढी मान्छेमा पुर्याउनु भयो। गान्धी वास्तवमा चाहिँ नि के लास्ट म्यान अफ द बटम भन्थ्यो नि, त्यो भुइँ मान्छे, त्यो धरतीको जमिनको सबभन्दा अन्तिम मान्छे, सबभन्दा पीडित छ, वञ्चित छ, प्रेरित छ हो, त्यसको स्वर हो। जस्तो ईश्वर एउटा सहारा हुन्छ नि मान्छेको, त्यस्तै ती वञ्चितहरूको सहाराको नाम गान्धी हो। त्यस कारण आज किन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गान्धीलाई चाहिँ नि एउटा अहिंसाको प्रतीकको रूपमा स्वीकार गर्यो, त्यो चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो बुझ्ने कुरा छ। अब अहिले पनि विश्वमा धेरै ठाउँमा हिंसात्मक आन्दोलन भइरहेछ, धार्मिक युद्धहरू भइरहेछन् र यो एक क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू नै पनि आपसमा मिल्न सकेका छैनन्। त्यसको पछाडि हेर्न गयो भने सशस्त्र द्वन्द्वहरू किन भइरहेछ भने त्यसका पछाडि कहीँ धर्म, आस्था, कालो सेतो, यो जाति ऊ जाति भन्ने छ। त्यस कारण गान्धीजीले के भन्नुभयो भने शान्तिपूर्ण अहिंसक बाटोबाट नगइकन, सत्य मार्ग नलिकन, अनुसरण नगरिकन कहीँ पनि शान्ति हुँदैन। तिमी अर्काको शान्ति अपहरण गर्न सक्छौ हिंसाको बाटोबाट, तर त्यसले तिम्रै शान्ति चाहिने के छ भने खोसिरहेको हुन्छ, तिमीलाई नै शान्तिबाट वञ्चित गरेर आउँछ। त्यसकारण यो सत्यको मार्ग भनेको, अहिंसाको मार्ग भनेको तिम्रो शान्तिलाई पनि प्रत्याभूति गर्ने हो, मेरो शान्तिलाई पनि गर्ने हो। त्यसकारण सामाजिक शान्ति चाहिन्छ भने हामीहरूले चाहिँ नि एउटा शान्तिपूर्ण द्वन्द्वहरूको समाधानकै बाटो लिनुपर्छ। त्यो बाटो भनेको संवादको बाटो हो। आऊ तिमी तिम्रो कुरा राख, म मेरो कुरा राख्छु, टेबलमा बसौँ, अनि के अरे छेनाफाना गरौँ, जसबाट तिम्रो पनि हित हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ। हामी वसुधैव कुटुम्बकम, हामी विश्वका एक कुटुम्ब हौँ, संसारका सबै मानिस दाजुभाइहरू एक दियाद हुन्, त्यसमा एउटा भाइचारा छ, भातृत्व छ। त्यसकारण त्यो सन्देश उहाँले प्रभावित गर्नु, त्यो सन्देश भारतबाट उहाँले विश्व सन्देश बनाउनु भयो। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले उहाँलाई चाहिँ नि एउटा शान्ति र अहिंसाको प्रतीक मान्यो र आज हामी चाहिँ नि भोलि अक्टोबर 2 विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि अहिंसा दिवस मनाएर चाहिँ हामी सबैको लागि अझ बढी नै गर्वको कुरा हो हामी यस क्षेत्रका मानिसको लागि। अब अलिकति म नेपालको कुरा राख्नु। चम्पारणमा आउँदा नेपालको चर्चा गर्नुभएको छ गान्धीजीले, मैले कतै पढेको थिएँ। हाम्रो उत्तरमा नेपाल छ भनेर, तर उहाँ आउनु पाउनु भएन। तर हाम्रो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा 7 साल अघि बिबी कोइराला कारावासमा हुँदाखेरि अन्तिम उहाँको अवस्थामा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ नि गान्धीजीलाई पत्र लिएर जाने भन्ने बित्तिकै त्यो पत्र गान्धीजीले लेखेर हाम्रा त्यो बेलाका राणा शासककार नपुर्याउँदै गान्धीको यत्रो ठुलो ओजन थियो, त्यसले चाहिँ एउटा के भन्नु चाहिँ नि म्याग्नेटिक इफेक्ट गर्यो, उनीहरूले बिपीलाई छोडिदिइसकेका थिए। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि गान्धीको ठुलो योगदान छ। उहाँले नेपालको डेमोक्रेसीको लागि आफ्नै किसिमले मद्दत गर्नुभएको छ र कति गान्धीवादी शिष्यहरू नेपालमा उहाँका भएका छन् र उहाँले हाम्रा नेताहरू भेट्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ नि के छ भने र त्यो बिपी कोइरालाको त विचारहरू तपाईँलाई थाहै छ के छ भने नेपालको स्वतन्त्रताको लागि, नेपालमा लोकतन्त्रको लागि पहिले भारतमा चाहिँ भारत स्वतन्त्र हुनुपर्छ, भारतमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेर बिपी कोइराला हाम्रा कतिपय नेताहरूले भारत स्वतन्त्रताको लागि कति नेपालीहरूले बलिदान गरेका छन्, सँगसँगै सहयात्रा गरेका छन् भारतीय आन्दोलनकारी सत्याग्रहीहरूसँग। यो त आफ्नो इतिहास छँदैछ, हाम्रो सहकार्यको एउटा साह्रै चाहिँ गौरवपूर्ण इतिहास छ। अब नेपालको यसमा आउँदाखेरि यो हामीले माओवादी युद्ध चाहिँ नि बेहोर्यो नेपालले 1 दशक पुरा, अहिले चाहिँ करिब 1.5 दशक भइसक्यो यो शान्ति प्रक्रिया काल भनौँ हामीहरू। तर के छ भने शान्ति प्रक्रिया सकिया छैन र गान्धीजीको यो जन्मजयन्तीको सन्दर्भमा यो सबभन्दा ठुलो प्रासङ्गिक कुरा छ। किनभने जबसम्म शान्ति प्रक्रिया काम सकिँदैन, युद्ध नसकिया मानिन्छ र के हुन्छ भने त्यो रिल्याप्स अफ भ्यालेन्स, फेरि हिंसाको पुनरावृत्ति भएको मानिन्छ विश्व परिप्रेक्ष्यमा भन्दैछु। र फेरि हिंसाको एउटा कारण के हुन्छ भने त्यो स्ट्रक्चरल भ्यालेन्स हुन्छ, संरचनागत हिंसा, जुन कि गरिबी जुन छ, शोषण छ, भ्रष्टाचार छ, अनियमितता जति छन्,
एउटा हामीले एउटा स्थितिको राष्ट्र बनाउन सकिरहेको छैन हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले के चाहिन्छ भने यो शान्ति प्रक्रिया पुरा हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया भनेकै हाम्रो के हो भने शान्ति सम्झौतामा लेखिएको छ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, हिजोको गल्ती कमजोरी नदोहोऱ्याउने। त्यसकारण चाहिँ मैले यसलाई शान्ति सम्झौता सम्बन्धी केही चाहिँ जुन बाँकी कामहरू छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुरा भनौँ अथवा बेपत्ताहरूको कुरा भन्नुहोस्, आज 13-14 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म बेपत्ताहरूले आफ्नो प्रियजन कहाँ छन् भने थाहा पाउन सकिरहेको छैन, जबकि युद्ध पीडकहरू सत्तामा धेरैचोटि बसिरहेका छन्। त्यसकारण पनि मलाई लाग्छ यो गान्धी जयन्तीको दिन हामी एउटा विश्व बन्धुत्व बढाउँ र हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत लगायत जस्तो कि यही क्षेत्र भनौँ न, अफगानिस्तान भनौँ, केही समय अगाडि श्रीलङ्का भनौँ, हाम्रो नेपालै भनौँ, अहिले पनि पाकिस्तानलाई त चाहिँ के छ भने त्यहाँ पनि शान्ति पूर्ण रूपमा छओस् भन्ने कामना गर्छौँ। तर कतिचोटि त एउटा आतङ्कवाद निर्यात गर्ने देशको रूपमा पनि लिइयो। यही क्षेत्रमा पनि कतिवटा अशान्तिहरू छ। नेपालमा पनि चाहिँ कि शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ नि म यो कामना गर्छु कि यो गान्धी जयन्ती र यो विश्व अहिंसा दिवसको परिप्रेक्ष्यमा यो गान्धीजीको आत्माले हामीलाई पनि चाहिँ यो हाम्रा शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने र हामीले फेरि एउटा शान्तिपूर्ण समाजको रूपान्तरण गर्ने चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ के छ भने त्यो मार्ग प्रशस्त होस्। त्यो गान्धीजीको आत्माले हामीलाई वरदान आशीर्वाद दिनुहोस्। त्यति मात्र होइन, आज आफ्नो अधिकारको लागि, चाहे स्वतन्त्रताको लागि, स्वतन्त्रता भनेको गान्धीको स्वतन्त्रता भनेको त्यो खालि राष्ट्रको स्वतन्त्रता होइन, त्यो भारतको स्वतन्त्रता मात्रै थिएन विदेशीहरूको शासनबाट, स्वराज मात्रै थिएन, त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि थियो, व्यक्तिको स्वराज पनि थियो। लिबरेसन अफ द नेसन एज वेल एज द लिबरेसन अफ द ह्युमन बिङ्स। मानिसलाई पनि त्यो मुक्ति र राष्ट्रको मुक्ति सँगसँगै छ। अहिले आएर हेर्ने हो भने त्यो राष्ट्रको मुक्तिको पक्ष चाहिँ नि पृष्ठभूमिमा गइसक्यो। मानव मुक्तिको कुरो गान्धीको सम्बन्धमा सबभन्दा ठुलो कुरो भइरहेको छ। त्यस कारण पनि म यो कामना गर्छु गान्धीको आत्माले विश्वमा आज आफ्नो अधिकारको लडाइँ, स्वतन्त्रताको लडाइँ जहाँ जहाँ भइरहेछन् त्यही हिंसाको बाटो छोडोस् सबै राष्ट्रले, सबै आन्दोलनकारीले र सबैले शान्तिपूर्ण बाटोबाट न्यूनतम क्षतिसहित जनधनको आफ्नो अधिकार प्राप्त गरून् र चाहिँ नि गान्धीले चिताए जस्तो, कामना गर्नुभए जस्तो त्यो एउटा स्वराज सबलाई प्राप्त होस्। राष्ट्रको लागि स्वराज र व्यक्तिको लागि स्वराज। र स्वराज भनेको म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो स्वतन्त्रता राष्ट्रको मात्रै स्वतन्त्रता होइन, व्यक्ति पनि खराबीहरूबाट मुक्त हुने। जति मानवमा चाहिँ नि खराबीपन छ, त्यो इभिल्सहरू भन्छ नि, जस्तो यो सेप्टेम्बर 11 भनिएको थियो नि इभिलका विरुद्ध लड्ने भनेर भनिएको थियो, त्यस्तै मानिसमा चाहिँ त्यो आतङ्कका दोषहरू जति छन् त्यो जम्मै चाहिँ नि के छ भने हामी अर्को वर्ष गान्धी जयन्ती बनाउँदा हामीले चाहिँ नि शान्तिको रेकर्ड एउटा विकसित भएको देख्न पाऊँ। यो अझ आवश्यक छ, किनभने विश्व नै अहिले चाहिँ नि केही समय अगाडिसम्म हामीहरू तेस्रो युद्ध त हामीले टारेकै थियौँ, गान्धीको आशीर्वाद थियो। तर एउटा हामी क्लाइमेट चेन्जको एउटा ठुलो चाहिँ नि के छ भने एउटा के भने क्षयकालबाट गुज्रिरहेको थियौँ। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले कोरोनाको फेरि क्षयग्रस्त भइरहेछ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यी सबको लागि पनि गान्धीको आत्माले हामीलाई आशीर्वाद दियोस् कि हामी शान्तिपूर्ण विश्वका मानिसले हामी सबले स्वतन्त्र भएर वास्तविक रूपमा व्यक्ति एउटा स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाओस्। संविधानमा मात्रै बाँच्ने हक, राइट टु लाइफ लेखेर हुँदैन, राइट टु डेभलपमेन्ट लेखेर हुँदैन, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने, त्यो जनतामा त्यो जिउने मर्यादित जीवन जिउने जुन गान्धीजीले चाहनुभएको थियो त्यो व्यवहारमा सबैलाई प्राप्त होस्। गान्धीजीले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। आपने सर बहुत सही कहा कि गांधी हैड ट्रांसेंडेड एवरीथिंग। व्यक्ति, धर्म, राष्ट्र की किसी सीमा में बंधे नहीं थे गांधी। हालांकि उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, बावजूद उसके वो एक विश्व नागरिक थे, विश्व मानव थे। और उनके चिंतन को, सेवा को और मानव मुक्ति में जो उनका योगदान है उन सबको हम सब ने याद रखा हुआ है। उनके दक्षिण अफ्रीका का अनुभव जो कि भारत में प्रयोग किया गया, भारत में काम आया, देश की स्वतंत्रता में काम आया और फिर मानव स्वतंत्रता की लड़ाई में भी लगे रहे। आपने फिर से रीइटरेट किया
उनके बात को जो पहली स्पीकर ने हमारे कहा था, मैडम डॉक्टर वर्षा दास ने, टाइमलेसनेस को, जो कि बियॉन्ड टाइम है गांधी, और इस बात पे हमें लगता है कि हमारे सारे पैनलिस्ट एग्री करते हैं। और सभी धर्म के एसेंस को उन्होंने समझा, मानव निर्माण की तरफ काफी सारा काम किया। आपने इस बात को पुनः दोहराया। और गेट ओवर द एविल एलिमेंट्स, इसकी बात आपने कही। शोषण की प्रवृत्ति हो या किसी भी ढंग की ऐसी प्रवृत्ति हो, आपने मानव अधिकार और मानव मर्यादाओं की बात करी। मानव मुक्ति के मार्ग के बारे में आपने कहा, संवैधानिक अधिकार का जिक्र किया, देवत्व के विकास की बात की, आजीवन तपस्या की बात की। गांधी किस प्रकार से सर्वदेशी थी, आपने इसको कहा। और कैसे ह्यूमनिस्ट थे। और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 19 जिसमें 148 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ 2 अक्टूबर को मनाने के लिए, उसका जिक्र आपने किया। मानवाधिकार घोषणा पत्र की भी आपने बात की, जो कि 1948 में ही अडॉप्ट की गई। इंसिडेंटली वही साल था जब गांधी जी नहीं रहे हमारे बीच। आपने द्वंद्व की बात की, शांतिपूर्ण आंदोलन, हिंसक आंदोलन, आतंकी आंदोलन की बात की, लेकिन आपने इस बात पे बल दिया कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ही मार्ग है। हम और किसी तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटल नहीं कर सकते। सत्यमेव जयते है, सत्य में ही विजय है। आपने सामाजिक शांति की बात करी। आपने स्ट्रक्चरल वायलेंस के बारे में अपनी बात रखी, जो गरीबी, शोषण, भ्रष्टाचार और इस तरह की कई चीजें हैं जो हमारी समाज में पाई जाती हैं। और आपने फाइनली लिबरेशन ऑफ द नेशन की बात की, जहां से लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स भी आया। और आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें राइट्स देते हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू डेवलपमेंट, लेकिन ये सारी चीजें हमें फिर से देनी पड़ेंगी, सबको देनी पड़ेंगी, उसमें किसी भी ढंग का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी बात रखी और हम लोग इससे बहुत ज्यादा सीखे। और एक बार फिर से हम सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद देंगे, लेकिन उसके पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने सहयोगी श्री सुरेश कुमार को, जो कि हमारे कॉन्सुलेट के बिहाफ पे आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। ही विल एक्सप्रेस ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। श्री सुरेश जी, फ्लोर इज योर्स। Sir, thank you, sir. Thank you very much, sir. Sir, you have already raised the views of all the panelists here. It's a great opportunity for me to join this webinar on Mahatma Gandhi's teachings. Sir, on behalf of the Consulate General of India, I'm really thankful for all our panelists who have come here and expressed their views in spite of their busy schedule, sir. Sir, first I would like to thank Srimati Varsha Das. She has really an encyclopedia in her thoughts and Gandhian ideology. And on behalf of the Consulate General of India, Birganj, I thank you. I thank her very much, and I extend my thanks for her, sir. Now, second, I would like to thank Purushottam Dahal, sir. He has told about the importance of Gandhian ideology in the development of the socio-economic system in the country, and he is the party he is belong is practicing the Gandhian ideology till today. It's a great honor, and we wish them all the best. And I take this opportunity to thank, on behalf of the CGI Birganj, I thank Purushottam Dahal sir for participating in this program. Sir, I would like to thank Chandeep Prasad Bhatt, who is from Uttarakhand. He has been an inspiration because he is virtually living गांधी जी का बहुत पसंदीदा कार्य एक है था वो पर्यावरण का संरक्षण, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारे लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। So we thank Padma Bhushan Chandeep Prasad Bhatt for his contribution, and on behalf of the CGI Birganj, I thank him very much for participating in this program. Sir, next I would like to thank our beloved Kishore Jha sir. He was an inspiration, coordinator. He is always well-wisher with the CGI Birganj. So whenever we have any problem,
we used to approach him for all the solutions. So being a Gandhian and inspired by the Gandhian ideology, he has delivered his thoughts and speech very nicely. And thank you very much for participating in this. Sir, I finally thank Damarnath Dungal sir, and he is the practical, he is the example of how the Gandhian principle can be adopted in a way, in the way of transformation from a society. Like you have been working in the ministry, you are working in the government of Nepal at the difficult time, and you have adopted the Gandhian principle in successfully to lead, sir. Thank you very much for your valuable contribution, and we're looking forward to your views and your ideas in the coming days also, sir. Finally, I would like to thank our Consulate General, because of without his views, this program could not have been possible. And he has done this, he has led from the front and practiced and many times. So we are really lucky to have a Consul General of this type in our consulate. We are looking forward to you all. I sincerely thank our Consulate General, sir, and also the supporting staff for contributing to this webinar. I once again thank each and everyone for participating. Thank you very much, sir. Thank you, Sureshji. Thank you for your kind words. Now I would take permission from all the panelists, thanking once for the final time from the CGI Birganj team. Now we request you to please sign off, or we'll ask our technician from here to sign off. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for joining. Very much.